Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Aziz Sathiyo. Welcome. I believe सबको all of you are aware of languages. आपको कोई मसला नहीं है. You can understand Hindi and English, both of you, both of the languages. So I think my communication mix रखूंगा to get the best results, inshallah. And if anyone is having discomfort with uh, Hindi या उर्दू के इस्तेमाल में, so they can comment or give their feedback. So I'll just go for what with purely English language, inshallah. But as of now, I think everyone is good and will understand better if we take it with us both languages, inshallah. So I'll share my screen and we'll start our presentation. Screen sharing is only with the host. Okay. Sorry, Ahmed bhai. Mm-hmm. Okay, let's share the screen. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh again. And this is our Enhancing Focus Masterclass. My name is Ahmed and I'm a trainer and life coach as of now. And today we are going to deep dive into something called focus. So I just want to check with how many of you are with me and how many of you are really into the session. So please, can you type on your chat back in your chat box that you are in it? Just type let's focus. मैं देखूं कितने लोग आप में से focused हैं already. I want to know. So chat box में लिखिए कि focused. You are focused. Let's focus. Okay, let's focus. I want more. I want more. Only 3 people. Don't direct message me. Write it publicly. Everyone should know. Okay, focus. Some of them are already focused. Focused. Wow. Some of them are focused. I am focused. Okay. Half of pie is I am focused. Let's focus. Good way to know who's virtually alive. Very good. Yeah, sure. Let's focus. और कौन फोकस में है? बाकी सब लोग फोकस में नहीं है क्या? Okay, so कुछ लोग focused हैं already. So those who are already focused, I have a bad news for you. Maybe because since you're already focused, maybe you'll not get to learn anything special. But for those who are let's focus mode, जो focus करने आ रहे हैं, आने वाले हैं, so you have got a good news with you, inshallah. Okay, so welcome and bismillah. Okay, हम आगे चलते हैं. Okay, introducing focus. तो why focus? Can anyone just क्या मतलब फोकस क्यों जरूरी है? बेसिक क्वेश्चन. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो इट. सब लोग जानते हैं कि फोकस क्यों जरूरी है. You can type anytime. You can use the chat box or raise your hands or anything anytime. Okay, you are free to use that. So फोकस क्यों जरूरी है? फोकस किस लिए जरूरी है ये हम सबको पता है. बिकॉज विदाउट फोकस आवर टास्क वोंट कंप्लीट. आवर टास्क वोंट गेट कंप्लीटेड इन अ बेस्ट वे. हम जो करना चाहते हैं हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे. हम अपने डिजायर्ड स्टेट तक नहीं पहुंच पाएंगे फ्रॉम आवर करंट स्टेट्स. और द लाइफ विच वी आर द चैलेंजेस एंड द ट्रबल्स विच वी आर सीइंग, वो हमें कभी ना कभी हमेशा हम उसका कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर हम फोकस्ड नहीं होंगे. अब दैट कैन बी अ स्मॉल टास्क. एक चाय पीना भी फोकस के साथ नहीं पियेंगे तो चाय होठ पे जाने के बजाय दाढ़ी में भी जा सकती है और कपड़े पे भी गिर सकती है, जैसा कि मेरे साथ एक दिन पहले ही हुआ. आई एम रियली सॉरी. लोग बट कपड़े मुझे ही धोने थे तो सॉरी किस बात की, मुझे अपने आप को ही करना पड़ेगा. तो फोकस इसलिए जरूरी है. और लाइफ में फोकस इसलिए जरूरी है क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ के अंदर वी हैव गोल्स, वी हैव टारगेट्स. हम अपनी जिंदगी का एक मकसद लेके चलते हैं. हम अपनी जिंदगी का एक गोल सेट करते हैं. अपनी जिंदगी की कुछ वैल्यूज सेट करते हैं. एंड टू अचीव ऑल ऑफ देम वी नीड ऑब्वियसली फोकस. ठीक है. अभी फोकस की ज्यादा जरूरत क्यों पड़ रही है? लाइक दिस प्रॉब्लम ऑफ फोकस डिडंट एग्जिस्ट लाइक मे बी 20 to 30 years बैक एज मच एज इट्स नाउ. व्हाई? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि ह्यूमन काइंड, सोशल मीडिया इज अ गुड थिंग डॉक्टर सी. इट्स अ रियल कंसर्न बिकॉज सोशल मीडिया ने आपको डिस्ट्रैक्शंस में बढ़ा दिया है. बट इट्स नॉट एक्चुअली द कॉज इज सोशल मीडिया. द एक्चुअल कॉज इज द इंक्रीज इन डेवलपमेंट. हमारा डेवलपमेंट इतना तेज हुआ है इन द लास्ट 30 years which the mankind or humankind hasn't seen in the last maybe 3,000 years. जितना डेवलपमेंट पिछले 5-6 हजार सालों में नहीं हुआ होगा उतना 1992 से 2022 में हो गया. 29 सालों में इतना डेवलपमेंट हो गया जितना पिछले 1000 सालों में नहीं हुआ, 3000 सालों में नहीं हुआ. या मैं ज्यादा बोल लूँ तो 10,000 साल में भी उतना तेजी से क्या नाम है ग्राफ मतलब एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन के साथ
डेवलपमेंट बढ़ा है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि पहले एक इंसान, आप आज से 50 साल पहले भी चले जाएं, कि आदमी खेत में काम कर रहा है, सुबह में कुछ भी कर रहा है, फिर शाम को वापस घर आ रहा है, आराम कर रहा है, नेक्स्ट डे फिर वही। लाइफ इज ऑलमोस्ट मोनोटोनस। बहुत ज्यादा इवेंट्स नहीं हो रहे हैं। शादी की खबर आ रही है तो सालों में कोई एक शादियां हो रही हैं, मैयत की खबर आ रही है तो कभी बहुत रेयरली किसी की मैयत की खबर आती है। तो इतने ज्यादा इवेंट्स नहीं है। अभी फलस्तीन में कुछ हमला हुआ, कुछ भी हुआ, एंड यू विल हियर अबाउट इट आफ्टर, मे बी वो खबर उठेगी, आएगी, अखबार मिलेगा। अखबार से पहले की दुनिया थी तो 6-6 महीने बाद कहीं से खबर पहुंचेगी। अच्छा हाँ, तब तक सारा मामला ठंडा भी पड़ चुका होगा। अब मिसाल के तौर पर कि एक जगह पे एक बादशाह ने हमला कर दिया और उसने कब्जा कर लिया, तो जब तक खबर आप तक पहुंचेगी, जब तक दूसरे बादशाह ने हमला करके फिर दूसरा बादशाह वहां पे कब्जा कर चुका होगा, जब तक आपको एक बादशाह की खबर मिलेगी। तो इतना स्लो पेस्ड न्यूज का प्रोसेस था, ट्रेवलिंग था, इन्फॉर्मेशन वॉज स्लो। तो उस क्या नाम है स्लोनेस की वजह से वी हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, कि हमें खबरें नहीं पहुंचती थी, हमें इतनी ज्यादा बुम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा नहीं था। सो हमारा फोकस भी, डिस्ट्रैक्शन कम था। क्यों? हमारे पास करने को क्या है? हम पूरा जो करना है कर रहे हैं, जो पढ़ रहा है वो पढ़ ही रहा है, जो काम कर रहा है वो काम ही कर रहा है, जो घर में है वो घर में ही है, जो खाना पका रहा है उसके क्यों। अभी ऐसे माशाल्लाह हमारे आज के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑल मोड ऑफ सिस्टर्स, जैसे मैं देखता हूँ कि किचन में अगर काम कर रहे हैं तो साथ में फोन भी बढ़िया चलता है, किसी के पाकिस्तानी सीरियल्स चल रहे हैं, someone is watching, maybe listening to Naats, or someone is listening to maybe something they like, which whatever they do, मतलब फोन है साथ में किचन में। which you cannot imagine 50 years back। किचन में काम करते क्या था? सिर्फ मसाला ही था, तो पूरा फोकस मसाले पे था, या पूरा फोकस क्या नाम है कढ़ाई सही बन रही है नहीं बन रही है, या पकौड़े सही तल रहे हैं कि नहीं तल रहे हैं, या चाय में एकदम उबाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई एम श्योर कि आज से 50 साल पहले दूध उबलने के इतने वाकयात किचन में नहीं होते होंगे जितने आज के दौर में होते हैं। हाँ, रिसेंटली मैंने भी कर दिया था। तो लाइक ये सब मेरी जिंदगी के खुद के एग्जांपल्स हैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। सो दैट शोज दैट कहीं ना कहीं फोकस बहुत बुरी तरह ड्रॉप हुआ है। अब इसका एक एग्जांपल हमारे एंटरटेनमेंट से लेते हैं कि कुछ लोग होते हैं उनका एंटरटेनमेंट फारिग वक्त में क्या है, माशाल्लाह वी हैव सम ऑफ देम। कुछ हमारे इस क्लास में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम बिब्लियोफाइल्स हैं, बुक लवर्स हैं, वो मुताले के एकदम बीस्ट हैं। दे जस्ट रीड एंड रीड एंड रीड। तो उनका पास टाइम रीडिंग है। रीडिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस, क्योंकि आपको बैठ के पढ़ना है, उस पर काम करना है, उस पर क्या नाम है देर तक पढ़ना है। यू डोंट गेट इमीडिएटली रिजल्ट्स। आपका डोपामिन भी हिट नहीं करेगा। 1 पेज 2 पेज 3 पेज, कई बार 300 पेज पढ़ेंगे तब कुछ समझ में आएगा। राइट और रॉन्ग? आर यू ऑल विथ मी? हाँ, मुझे उलझन नहीं लगती है। पुट सम आर यू विथ मी और नॉट? हाउ मेनी ऑफ यू आर बुक्स और मूवीज और वीडियोस और रील्स? इन चार में से व्हिच वन यू विल प्रेफर एज ऑफ नाउ? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स कि आप बुक्स का टीम से हैं, कि टीम मूवीज हैं, कि टीम वीडियोस हैं, कि टीम रील्स हैं। ओके, बुक्स, वीडियोस, रील्स, बुक्स, बुक्स। अरे बाप रे बाप, बुक्स फॉर एवर, बुक्स। अल्लाह अकबर, इतने सारे किताबी लोग हैं यार। तब तो मैं बंद कर देता हूँ यार, फिर क्या फायदा यार मेरा कोर्स चलाने का। आप लोग का तो ऐसे ही फोकस इतना डेवलप्ड होगा फिर। तो खैर, बुक्स होते हैं, यू नीड मेनी डेज टू अचीव अ रिजल्ट एंड गेट अ फील ऑफ इट, राइट। उसके बाद हाँ, पॉडकास्ट भी बेहतरीन, वीडियोस एंड पॉडकास्ट आर सिमिलर थिंग्स, ओके, राइट। उसके बाद कुछ लोग मूवीज हैं, मूवीज में 3 घंटा तो देखना ही पड़ेगा भाई। 3 घंटे का तो फोकस पकड़ेगी ही पकड़ेगी, बीच में आप एक दो बार कहीं ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, राइट। उसके बाद वीडियोज आती हैं कि यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियोज होते हैं, तो वो उनका अप्रोक्सीमेट एक वीडियोज का देखने का इंसान का लाइफ स्पैन जो है, जनरली जो एक एवरेज आया है स्टैटिस्टिक्स में, वो 40 मिनट्स के आसपास, 30 to 40 मिनट्स जनरली आदमी वीडियोस देखता है, अगर किसी को इंटरेस्ट है अच्छी वीडियोस देखने में, कुछ भी देखने में, पॉडकास्ट सुनने में। सो इट कैन बी इवन 10-15 मिनट्स और 20 मिनट्स भी, लेकिन 30 मिनट्स तक आदमी बेयर कर लेते हैं। और रील्स तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, 30 सेकंड 40 सेकंड कुछ भी हो सकता है आपका, और उतने में ही इंसान का पेट भर जाता है। और अब तो पता नहीं, मतलब आई हैवंट यूज्ड टिकटॉक, बट आई हैव हर्ड कि टिकटॉक ने तो वो भी आपको अब वो दे दिया है कि लाइक यू कैन फास्ट फॉरवर्ड द रील्स इवन। मतलब सोच सकते हो आप, 30 सेकंड की वीडियो उसमें भी फास्ट फॉरवर्ड कर लो क्योंकि बोरिंग लग रहा है। और हमारे एक साथी है, अजीज साथी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप लोग शायद वाकिफ हो शायद ना वाकिफ हो, ट्विटर पे हैं वो भी। तो उन्होंने एक बार इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा रील देखा, इतना ज्यादा रील देखा, कि इंस्टाग्राम ने उन्हें कह दिया कि देयर आर नो मोर सजेशंस फॉर यू। तो मैं भाई, मैं अफसोस कर रहा था कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और उनके ऊपर आसानी फरमाए, कि उन्होंने इतनी रील देख ला ली कि इंस्टाग्राम भी उब गया कि भाई बस कर दे, छोड़ दे, कुछ काम कर ले। तो खैर, ये है क्या नाम है हमारा फोकस का डिक्लाइन, जो हमने जमाने के साथ देखा कि पहले लोग आज से 30 साल पहले भी बुक्स का एक रिवाज था, फिर एक मूवीज का ट्रेंड पकड़ा, फिर वीडियोज आ रही हैं, और उसके बाद रील्स और तेज आ रही है, और कल को कुछ और भी आ जाएगा, शॉर्ट्स के नाम पे और भी चीजें आ सकती हैं। लेट्स सी व्हाट गो। तो फोकस का जो बेसिकली चैलेंज है हमारी जिंदगी में, दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है हमारे लार्जर लाइफ गोल्स में हम फोकस नहीं कर पा रहे, कि भाई मेरी जिंदगी क्या मुझसे मांग रही है, मैं क्या जिंदगी में मांग रहा हूँ जिंदगी से, और जिंदगी मुझसे क्या मांग रही है, मेरे क्या नाम है टारगेट्स में क्या है, और मेरे गोल्स क्या है, मिशंस क्या है, उनमें फोकस नहीं कर पा रहा हूँ।
तो उनका क्या नाम है, डेली का करने का कुछ एक स्पेसिफिक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक लार्जर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको कुछ काम कंसिस्टेंटली करने होंगे अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए। तो उनमें एक फोकस होता है, और एक छोटा फोकस होता है कि भाई मुझे आज आधा घंटा बैठ के पढ़ाई करनी थी, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ। मैं बैठा था काम करने के लिए, चाय बनाने के लिए, लेकिन मैं किचन में पहुंच गया, मोबाइल खोला और आधे घंटे तक मैं मोबाइल ही चलाता रहा, चाय तो मेरे से बनी नहीं। खैर ये होता नहीं होगा। हाँ, लेकिन वॉशरूम का एग्जाम्पल बहुत लेजिट है। कुछ लोग वॉशरूम में मोबाइल्स लेके चले जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ चले गए, वो वॉशरूम में ही है, कहीं पे है, क्या उन्हें नहीं पता। तो स्मॉल टास्क, छोटे छोटे टास्क में भी हम फोकस लूज कर जाते हैं कई बार। जैसे लड़कों का बहुत प्यारा कंप्लेन है, जो बहनें भी करती हैं, माएँ भी करती हैं और बीवियां भी करती हैं। तो यानी ये छोटे से बड़े सारे लड़कों का मसला है कि घर से निकलते हैं धनिया लेने और वहां से लेके आते हैं कोथमीर, या फिर जाके क्या नाम लाइक दे डू, आई थिंक ये बहुत कॉमन है, मैंने भी किया है। सो आई नो इट कि हम ले निकलते हैं आलू और लेके आ जाते हैं बताता, या क्या क्या नाम है, टमाटर, कुछ भी लेके आ जाते हैं। सो लाइक ये एक क्या नाम है आपका फोकस की कमी की निशानी वो भी कर रही है। तो छोटे छोटे टास्क हो चाहे बड़े बड़े टास्क हो, हर जगह हम फोकस कहीं ना कहीं लैग करते चले जा रहे हैं। ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा मसला है। तो चैलेंज कहाँ पे है, विल जस्ट लुक कि चैलेंज है क्या असली। ओके लाइक आइए चैट बॉक्स में देखते हैं आपको क्या लगता है कि वेयर इज द रियल चैलेंज, कि मसला चैलेंज का है असली कहाँ, कि आई कुड हैव यूज्ड द वर्ड, क्या बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ चैलेंज आई कुड हैव यूज्ड द वर्ड प्रॉब्लम, बट आई डोंट यूज वर्ड प्रॉब्लम बिकॉज प्रॉब्लम मेक्स यू फॉल इन प्रॉब्लम एंड चैलेंज मेक्स यू फॉल इन रिजोल्यूशंस। हाँ तो ओके ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज ए मेजर इशू, बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है। पर मेजर इशू क्या, प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप में इशू ही है। और प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं है, कैस्टिनेशन जरूर होगा। लैक ऑफ पेशेंस, हाँ सब्र की कमी भाई। जब आपको हर चीज में जल्दबाजी है, 30 सेकंड की आपको बाद वीडियो नहीं एक देखी जा रही, तो आप कहाँ से भाई, वो लैक ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल। अगर इंटरेस्ट, हाँ ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है जो इस्लाम में हराम है, ये वाला इंटरेस्ट हाँ एकदम हलाल है, बल्कि मुबाह है, बल्कि सुन्नत और फर्ज भी है कई जगहों पे। तो ये वो वाला इंटरेस्ट है कि भाई इंटरेस्ट पैदा करना है अपने 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 कामों में, भाई अल्लाह की इबादत भी बिना इंटरेस्ट के नहीं हो सकती। हाँ तो ये वो दिलचस्पी वाला इंटरेस्ट, you're liking multitasking, oh my god, oh bhai we have some really brilliant people multitasking. Okay, we'll talk about multitasking is good or bad, I don't know, maybe you know it। तो ये भी एक चीज है, चैलेंज यहाँ भी है। मल्टीटास्किंग करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, अभी क्लास भी चल रही होगी, साइड में मोबाइल भी देख रहे होंगे, किसी से चैट भी कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। हाँ तो होते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं भाई उधर लेक्चर भी चल रहा है, बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है, इधर प्रिपरेशन भी चल रही है, हम तो न्यूज फाड़ के फेंक देंगे इस बार। हाँ और पीछे पीछे गाना चल रहा होगा कुछ भी रैंडम, हाँ कि भाई जिंदा है तो कर ले, कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कॉजेज ऑफ पुअर फोकस, वैसे तो देयर कैन बी 1001 कॉजेज ऑफ पुअर फोकस, बट अल्टीमेटली हर कॉज को आप पकड़ लें और उसके ऊपर बात करें, इट विल बी यूजलेस। एक्चुअल में 3 ही 4 कॉज बनेंगे, घूम फिर के सारे कॉजेज इन्हीं कहीं में शुमार हो जाएंगे। ठीक है। सो उन सारे कॉजेज को हम एक बार देखेंगे। तो देखिए एक कॉज आया लैक ऑफ मोटिवेशन विच नोबडी मेंशन्ड, मे बी लैक ऑफ इंटरेस्ट कैन, lack of interest can be called as lack of motivation. Yes, Dr. Z, the urge to open your phone at early morning can ruin your whole day. भाई आंखें तो खोल लो पहले, आंखें नहीं खुलेगी तो फोन खोल के क्या करोगे ढंग से, और दिमाग की बत्ती भी खोल लो पहले। राइट, सो लैक ऑफ मोटिवेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पुअर फोकस। क्यों, क्योंकि आपका अगर किसी चीज को करने का, वन थिंग विच यू हैव टू डू एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डू, इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू डू दैट थिंग, व्हाई वुड यू फोकस ऑन इट। अब मेरे को एक काम करना ही नहीं है, मेरे को उस काम को करने में शौक ही नहीं आ रहा है, मेरे को उस काम को करने का कोई मोटिवेशन ही नहीं है मेरे अंदर, तो मैं उस काम में अपना 100% फोकस क्यों दूंगा। लाजिम सी बात है, मैं उस काम को करते हुए दाएं भी देखूंगा, बाएं भी देखूंगा, आगे भी देखूंगा, नीचे भी देखूंगा, हर जगह देखूंगा। लाजिम सी बात है। तो ये एक लैक ऑफ मोटिवेशन, एक क्या नाम है, बड़ा मेजर कॉज है। और क्या कॉज है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ओहो सम वेरी बिग टर्म्स। तो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, कितने लोग आप में से इस चीज को राइट मानते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी कैन कॉज यू अ पुअर फोकस समथिंग। इंक्रीज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बिल्कुल ये तो होंगे, लेकिन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, किनको लगता है कि स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी फोकस के लिए हानिकारक है। जस्ट टाइप yes or no in the chat box, yes it does affect focus। बस सिर्फ 3 लोगों को लगता है। शादी का स्ट्रेस ब्रो, ओह माय गॉड, अरे यार स्ट्रेस तो पहले ऊपर, ठीक है शादी का स्ट्रेस तो बहुत बड़ा है, तो इसका इलाज यही है कि आप बस इस्तगफार करिए दिन रात। और क्या कर सकते हैं। ये अच्छा, शादी का स्ट्रेस शादी के बाद होता है, शादी से पहले एंग्जाइटी होती है। आई वर्क बेस्ट अंडर स्ट्रेस, वाओ, ठीक है, फोकस ऑन योर स्टार्टअप, ये भी अच्छी बात है। स्ट्रेस इज गुड, सम स्ट्रेस इज रियली गुड, स्ट्रेस विल मोटिवेट यू टू वर्क, ये तो फैक्ट है भाई। लेकिन स्ट्रेस जब ओवर हो जाए, अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए, तो स्ट्रेस इज गोइंग टू हार्म यू। स्ट्रेस एक लिमिट तक आपको जरूरी भी है, स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन जब स्ट्रेस अपनी एक लिमिट
एक टाइम जैसे इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग हु इज पुलिंग हु. वंस स्ट्रेस इज पुलिंग यू, तब तो ठीक है, मतलब तब तो ठीक नहीं है. वंस यू आर पुलिंग योर स्ट्रेस, कि आप अपने स्ट्रेस को खींच के लेके जा रहे हैं एंड यू आर गिविंग इट डायरेक्शन कि क्या करना है, तो फिर तो वो स्ट्रेस आपको डायरेक्शन अच्छा देगा. वो स्ट्रेस इज गुड हेल्दी फॉर यू. मगर स्ट्रेस ने आपकी लगाम पकड़ ली, यानी बजाय घोड़े का, आप घोड़े पे सवार होने के घोड़ा आप पे सवार हो गया, तो अब आपका डायरेक्शन कुछ और होगा और आपके ऊपर कुदाले भी पड़ेंगी, आपके ऊपर पत्थर भी पड़ने वाले हैं. अब आप इमेजिन कर लीजिए कि वंस अ हॉर्स इज अपॉन यू, तो क्या सिचुएशन बने वाली है. तो वही होता है, स्ट्रेस जब आपको डायरेक्शन सिर्फ दे रहा हो, सिर्फ मोटिवेशन दे रहा हो, तब तो ठीक है. लेकिन स्ट्रेस के आपके ऊपर चढ़ गया हो, तब तो इट्स वेरी बैड. उसके बाद ओ हो माय गॉड, ओवर थिंकिंग है. कितने लोगों को यहाँ लगता है कि ओवर थिंकिंग इज रियल 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 ट्रबल? जस्ट ड्रॉप इन द चैट बॉक्स. मैं आपको मेहनत कराते रहूंगा, आप ये मत सोचो कि फोन छोड़ दोगे या कुछ भी. लैपटॉप पे लैपटॉप पे करना. मी नॉट रियल इफ यू हैव ईमान. अरे वाह क्या बात है यार, हमारे दरमियान बुजुर्गान दीन भी है माशाल्लाह, तवक्कुल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. और कितने लोग हैं जो क्या नाम है ओवर थिंकिंग से स्ट्रगल करते हैं, ओवर थिंकिंग से परेशान होते हैं. लेट मी टेल यू, ओवर थिंकिंग बहुत नेचुरल चीज़ है, तो इसलिए इसमें कोई तवक्कुल और ईमान की इस पे बहस बाद में की जा सकती है, कि उसका मसला नहीं है. वो अगर आपके पास है ओवर थिंकिंग, तो वी हैव टू डील विद इट, यू हैव टू मूव अहेड एंड टैकल इट इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम इट. तो ओवर थिंकिंग इज रियल मेजर इशू. तो है हमारे पास कुछ लोग हैं जो ओवर थिंकिंग से परेशान है. तो लेट आई हैव अ गुड न्यूज फॉर ऑल दोज ओवर थिंकिंग. यू पीपल आर जीनियस, रियली जीनियस. आई डोंट मीन टू डीमीन द अदर्स दोज हु डोंट ओवर थिंक, बट जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप जीनियस हैं, ये बात याद रख लीजिए, क्योंकि जीनियस दिमाग ही की ताकत है कि ओवर थिंकिंग कर सकता है. यानी देखिए, जिस इंसान का दिमाग चल रहा होता है, तो वो दो काम करता है, या तो ओवर थिंकिंग कर लेता है, या तो जिंदगी में कुछ उखाड़ लेता है. तो मतलब ही विल अचीव समथिंग रियली अमेजिंग, और ही विल स्टार्ट ओवर थिंकिंग. तो दोनों में से एक ही ऑप्शन है. इट्स साइन ऑफ अ ब्रिलियंट माइंड. सो congratulations if you are an overthinker. You are just one step away from being a great inventor or something in a genius. Okay. अच्छा, एक बहुत बड़ा आज के दौर का मॉडर्न, like what is that, digital overload. How many of you think that you have been digitally overloaded? uh, अक्सर लोग हैं बीच बीच में भाग जाते हैं कभी, और वो आंख मचोली खेलते हैं ट्विटर की तरह. वो 2 दिन डीएक्टिवेट, फिर 1 दिन एक्टिवेट, फिर 2 दिन डीएक्टिवेट, फिर 1 दिन एक्टिवेट, ऐसा करते हैं. कोई इंस्टाग्राम से भागते आते, फिर ऐसा कुछ लोग करते हैं, क्या नाम है वो, कोई ऐप डिलीट करके भागता, कोई क्या नाम है डीएक्टिवेट करके भागता, कोई लॉग आउट करके भागता. और क्या नाम है, कुछ लोगों को इससे फायदा भी होता है. बिल्कुल है. इट्स यू हो सर. ओ माय गॉड. हाँ, मैं भी बहुत क्या नाम है अभी तो फंस गया. आजकल तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये कि हाँ, इवन आई डिजिटल ओवरलोड से, भाई मैं भी इंसान हूँ यार, मैं कोई आसमान से आया फरिश्ता थोड़ी. तो डिजिटल ओवरलोड इज ऑल्सो मेजर प्रॉब्लम. हम इस पे भी थोड़ा बात करेंगे. मल्टीटास्किंग. अब हम बात कर रहे हैं कुछ और अच्छी सी. तो बताइए, आप में से कितने लोग मल्टीटास्किंग को अच्छा समझते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू डू मल्टीटास्किंग, एंड इनफैक्ट कितने लोग अभी हैं जो अभी कर रहे हैं मल्टीटास्किंग? Okay, Dr. Z is one of the flag bearers of multitasking. Anybody else who thinks multitasking is good for focus? Zahid Hussain, it helps. Okay, not me. Okay, sometimes. Okay, यानी कभी कभी बुखार पकड़ लेता है, कोई बात नहीं. हाँ, depends on how many tasks you include in your multitasking. Overburdening is involved. अच्छा, मतलब कुछ अगर 1-2 टास्क हैं तो चलेंगे, ज्यादा है तो नहीं करेंगे. इट हेल्प्स बट इट ऑल्सो डिवाइड्स योर फोकस. क्या बात है यार, आप ही आज क्लास कर लो, करा लो भाई, इतनी गहरी गहरी बात. इट्स गुड समटाइम्स और डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम. ओके, टाइम की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है आपके पास ज्यादा काम हो और मल्टीटास्किंग के अलावा कोई ऑप्शन ही ना हो. अच्छी बात है. पैसिव टास्क एंड एक्टिव टास्क कैन बी डन. अच्छा, कि एक टाइप पे पैसिव टास्क हो रहा है और एक्टिव टास्क हो रहा है. अरे इतने मुश्किल मुश्किल से नहीं लिखा करो यार, मैं भी मतलब बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ यार. टुगेदर एट सेम टाइम, हाँ मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि एक एक्टिव टास्क कर रहा हूँ, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, साथ में मैं चाय पी रहा हूँ, तो ये मेरा एक्टिव पैसिव टास्क हो गया, राइट. तो खैर मेरी चाय खत्म हो गई, डोंट वरी. तो ये हैं. तो चलिए आइए देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे इंशाल्लाह. मल्टीटास्किंग पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम लैक ऑफ मोटिवेशन पे बात करते हैं. ठीक है. तो मोटिवेशन, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मोटिवेशन उनका कॉज है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस इज देयर प्रॉब्लम? ये हिट किया उन्होंने, मैंने जितने कॉजेज अभी बताए उनमें से ये वाला उनको लगता है कि दिस इज देयर प्रॉब्लम, कि उनको मोटिवेशन नहीं है अपने किसी भी लाइफ गोल में या किसी चीज में. जो मैंने दो क्या नाम हिस्सों में डिवाइड किया था, कि स्मॉलर गोल्स एंड स्मॉल टास्क एंड लाइफ गोल्स. तो लाइफ गोल्स में कई बार लगता है मोटिवेशन नहीं है, तो वहां पे ये ज्यादा इफेक्ट करता है. छोटे छोटे काम में, अब खाना बनाना, चाय पीना, उसमें मोटिवेशन का कम होना इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो छोटे टास्क हैं, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाते हैं, या नहीं भी होते हैं तो जिंदगी का खराब नहीं होती. भाई अब मैं एक दिन चाय नहीं पीऊंगा तो मेरी जिंदगी थोड़ी ना खराब होती, राइट. लेकिन हाँ, भले मुझे मम्मी से डांट पड़ जाए या मुझे अपने रूममेट से डांट पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा मसला नहीं होगा. लेकिन लाइफ में अगर मोटिवेशन नहीं है किसी बड़े गोल को लेके,
जैसे मेरे आपकी जिंदगी में ऐसा, ओके वी हैव 2-3 पीपल हु थिंक दैट दिस इज देयर प्रॉब्लम, तो उनको चाहिए कि अपनी लाइफ में एक गोल तय करें। यू हैव टू सेट अ गोल इन योर लाइफ कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है। अब गोल सेटिंग इज अ प्योर एंटायरली डिफरेंट साइंस, तो हम इस लिमिटेड टाइम में सब कुछ तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, व्हिच बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज द व्हाई बिहाइंड। आप कोई भी काम जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे का वाई ढूंढ के निकालो कि क्यों कर रहे हो वो काम। लाइक इवन इफ यू आर अटेंडिंग दिस क्लास, व्हाई आर यू अटेंडिंग इट, दिस विल गिव राइज, ये सोचो एक बार। और समटाइम्स सिर्फ सोचना काफी नहीं है, राइट इट समवेयर। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को ये हैबिट है कि दे राइट एनीथिंग, मतलब घर में कुछ भी, एक डायरी है अपनी, कुछ भी है जहां आप रेगुलरली राइट करते हो, सिवाय कोर्स से हटके पढ़ने वाले स्टूडेंट्स वगैरह हैं, ज्यादातर लोग हैं, तो राइट करने की जिनके अंदर क्या नाम है कैपेसिटी है, आई हैव वन गुड, येप आई राइट, यस यस। जो लोग राइट कर सकते हैं, द वन हु आर राइटिंग आर ऑन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, उनके लिए आई हैव अ डेली जर्नल, फैंटास्टिक, दिस इज माय बेस्ट थेरेपी एक्सरसाइजेस जो मैं अपने कोच क्लाइंट्स को कराता हूँ। जर्नल जिसका डेली है उसकी आधी लाइफ तो वैसे ही सेट हो जाती है, माशाल्लाह। ओके, प्लस अ प्लानर, प्लानर भी बहुत अच्छी चीज है यार। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप ही पढ़ा दो यार, मैं बैठ जाता हूँ, मैं भी सीख लूँ। स्टिकी नोट्स, मी आई राइट एवरीथिंग, इवन नोटिंग टुडे सेशन, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, मैंने टुडे आज का सेशन के लिए तो मैंने ईमेल में लिखा भी था कि आप एक पेन पेपर लेके आए, एंड मे बी आई टेल यू टू राइट समथिंग्स, और यू शुड एटलीस्ट नो मोटिवेशन टू राइटर एनी मोर। अरे राइटर नहीं बनो, लाइटर बन जाओ, कोई मसला नहीं यार, आग लगा दो दुनिया में, क्या दिक्कत है। बट यू शुड स्टार्ट राइटिंग, यू शुड स्टार्ट राइटिंग, दैट्स व्हाट। अब क्योंकि आप सब लोग मुसलमान हैं, तो मैं बहुत आसानी से इस्लामिक एग्जाम्पल्स और कुरानिक एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। बिल्कुल फोकस नहीं था, मैं सोचा था कि आप लोगों से टेस्ट लूंगा कितने लोगों ने पूरा मेल अच्छे से पढ़ा था, उतना लंबा चौड़ा मेल में इतना मेहनत करके लिखूँ और आप पढ़े भी ना, ये तो गलत बात है ना। तो एनीवे, तो लिखने के लिए जैसे मैंने बोला ना कि अल्लाह ताला ने जो हमारी पहली वही है जिसमें इकरा आया, पढ़ने का जिक्र आया, राइट, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इकरा व रब्बुकल अकरम, हाँ, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। अल्लाह ताला ने पहली वही में इंसान को बता दिया कि जिंदगी में कामयाब होने का, इल्म हासिल करने का, बुलंदी पे जाने का, हर चीज की क्या है, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। कलम हम सबको उर्दू आती है, अरबी आती है, कलम हम सब जानते हैं। तो द वन हु इज नॉट रेडी टू होल्ड द कलम इन हिज हैंड्स, और कलम की कोई भी मॉडर्न शक्लें हो सकती हैं, आजकल टैबलेट पे लोग स्टाइलस से लिखते हैं और आईपैड्स में अपनी उंगली से लिखते हैं और टाइपिंग करते हैं, कुछ भी राइटिंग की जिसकी हैबिट नहीं है, ही शुड डेवलप इट एट द फर्स्ट इंस्टेंस। ये मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ, फोकस में भी ये बहुत हेल्प करेगी, राइट। तो हमेशा के लिए अपने क्या नाम है राइटिंग की, अपने मोटिवेशंस को लिखिए, अपने टास्क और जिंदगी के नस्बुल आयन को तय कीजिए एंड राइट कीजिए कि व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू विथ योर लाइफ। और अपना कुछ भी जिंदगी का एक जस्ट गोल बनाइए, जब भी आपको लगे यू आर वेरी कंफ्यूज और वेरी क्लॉग इन योर माइंड और समथिंग, जस्ट स्टार्ट एंड राइट कि भाई लेट्स डू समथिंग। हम लिखते हैं भाई, क्या करना चाहता हूँ मैं अपनी जिंदगी के साथ, क्या करना चाहता हूँ। हाँ, मैं यहाँ तक तो पहुंच गया हूँ ऑटो पायलट पे, तो आगे लेकिन जहाज को कहाँ लेके जाना है, क्या सारी जिंदगी ऑटो पायलट पे चलने वाला हूँ। तो उसको आपको लिखने की आदत डालनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द वाई बिहाइंड, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन और अटेंशन का बहुत क्लोज रिलेशन है। स्टडी विच आई वाज रेफरिंग टू रिसेंटली ऑन अ बुक, उसमें यह था कि जितने लोगों का मोटिवेशन, जितनी तेजी से मोटिवेशन कम होता है, अटेंशन भी उतनी तेजी से कम होता है, लाइक दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोटिवेशन हाई होगा, अटेंशन फुल होगा। अच्छा, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, ऑल्दो आई डोंट फॉलो बट आई गिव एन एग्जाम्पल, कि जब हम क्रिकेट मैचेस देखते हैं, कुछ होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किस चीज का एक्सपेंशन उन्हें नहीं पता होता, लेकिन उन्हें ये जरूर पता होता है कि विराट कोहली की कितनी सेंचुरी हो चुकी है, ठीक है। उन्हें ये जरूर पता होता है कि कौन से किस मैच में किसने कितना अच्छा खेला था। और अब चलो ठीक है, फुटबॉल का नहीं, फुटबॉल वाले नाराज हो सकते हैं भाई, फुटबॉल में उन्हें पता होता है कि रियल मैड्रिड ने कब क्या किया था, या किस जमाने में रोनाल्डो ने कितने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया था। दे नो ऑल दोज बट दे डोंट नो कि क्या नाम है, कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल रांची है, या क्या नाम है तेलंगाना की कैपिटल कवराती है, या हैदराबाद है, जो भी है। उन्हें ये चीज़ नहीं पता होगी, बट उन्हें ये जरूर पता होगा कि मेसी ने क्या किया था, या फला वक्त पे किसने क्या किया था। दैट्स बिकॉज दे हैव अ मोटिवेशन, और वो उनके लिए फुटबॉल एक पैशन बन चुका है, पैशन इज इटसेल्फ अ मोटिवेटिंग फैक्टर। तो उन्होंने फुटबॉल को फॉलो किया है उस तरीके से, और वो बिना मेहनत के याद हो रहा है। एक्चुअल में मेहनत तो लग रही है वो, लेकिन दिख नहीं रही वो मेहनत, कि वो देख रहे हैं, उनको रिटेन हो रही है, उनको रिकॉर्ड्स भी रिटेन हो रहे हैं, उन्हें टारगेट भी रिटेन हो रहा है। और क्लास में मैथ्स के सर बेचारे 50 बार समझा के फॉर्मूला चले जाते हैं, बाहर निकलती है वो गायब हो जाता है। तो ये ये चीज बहुत मैटर करती है। इसी तरह लैक ऑफ मोटिवेशन आपके इफ लाइफ सेटिंग टास्क जितने होते हैं ना जिंदगी में, आपकी लाइफ को सेट करने वाले, ट्रैक पे लाने वाले, इसमें बहुत लंबी बात की जा सकती है, मैं इन शॉर्ट बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि
हैव टू सी अदर फैक्टर्स एज वेल। तो आपकी लाइफ को सेट करने के लिए ना मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो। ठीक है, इंशाल्लाह विल कीप सम अदर मास्टर क्लास ऑन पुटिंग अप लाइफ सेटिंग गोल्स एंड ऑल दोस, तो उस पर हम और बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें क्या है, कई बार आपकी जिंदगी में कुछ काम होते हैं जो बहुत बोरिंग होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी कोई तैयारी कर रहा है, नीट की या क्या नाम है, गेट की या किसी चीज की, इस तरह के एग्जाम की। अब उसके लिए बैठ के पढ़ना कई बार बोरिंग हो जाता है, राइट, वो बहुत बोरिंग है, लेकिन वो डिपेंड उस पर फ्यूचर कर रहा है सारा। तो वो कहेगा यार मैं इतना बोरिंग टास्क क्यों करूं। तो उसको याद रखना है कि वो क्यों कर रहा है वो। उसी वक्त यही है भाई कि आपको बनना एक्चुअल में डॉक्टर है, या आपको बनना एक्चुअल में एक बहुत जबरदस्त क्या नाम किसी आईआईटी में जाना है, एडवांस क्रैक करना है, कुछ भी करना है, तो आपको मेहनत करनी है। उसके लिए बोरिंग टास्क अभी करना पड़ेगा। अगर कल के लिए आपको कुछ अच्छा अचीवमेंट लेना है तो उसके लिए अभी बोरिंग टास्क करना पड़ेगा। कल के लिए मे बी यू हैव टू बिकम अ वेरी ग्रेट बॉक्सर इन लाइफ, तो आज ऐसे हवा में मुक्के या क्या बोलते हो पंचिंग बैग को पंचिंग बैग समझ के मारना पड़ेगा। सो एनीथिंग लाइक दैट। कई बार बोरिंग टास्क ऐसे होते हैं। बोरिंग टास्क करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, गेट अ मोटिवेटिंग फैक्टर कि हम क्या सीखने वाले हैं आगे, इससे क्या फायदा होने वाला है हमारी लाइफ में। तो ये बहुत जरूरी चीज है। और यू ऑल विथ मी? कितने लोगों को ये समझ में आया कि मोटिवेशन कितना जरूरी है? हाउ मेनी ऑफ यू आर विथ मी? राइट, जस्ट राइट सेम पेज इन द चैट बॉक्स, सेम पेज, SP सेम पेज, कुछ लिखिए ऐसा, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए आप लोग हैं यहाँ पे। सिर्फ 3 ही लोग लग रहा है फोकस्ड हैं। सेम पेज सेम पेज सेम पेज सेम पेज, जो क्या है 4-5 में देख लिया, मेरे दिल को सुकून आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हाउ टू कीप दैट मोटिवेशन अलाइव। मोटिवेशन अलाइव, ओके, एंड में इस पर बात कर सकते हैं कि मोटिवेशन को जिंदा कैसे करना है। इंसान को जिंदा करने के लिए क्या जरूरी है, अगर अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो उसकी जिंदगी में आदमी को क्या करना पड़ता है, जिंदगी को खाना देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, डेली सांस लेनी पड़ती है। तो उसी तरह आपकी मोटिवेशन का भी हाल है। मोटिवेशन को भी खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है, उसको दौड़ाना पड़ता है, उसको हेल्थ और फिटनेस की तरह मेंटेन रखना पड़ता है। तो मोटिवेशन उसी तरह लाइव रहता है। तो खैर विल एंड में इंशाल्लाह इन क्वेश्चन आंसर सेशन यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन, ओके, बिकॉज वी आर ऑलरेडी गोइंग, हमने स्टार्ट भी लेट किया था तो हम लेट जा ही रहे हैं। तो एनीवे, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी पे ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये एक अपने आप में बहुत डीप चैप्टर है। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि आपकी बॉडी में जितने लोग, जितने हाई परफॉर्मिंग लोग, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार आज से 4-5 साल पहले कॉलेज में जब थे या हम स्कूल पास कर रहे थे, तो उस वक्त हम बहुत जबरदस्त हाई परफॉर्मेंस हुआ करते थे, बहुत वांटेड थे अपने कॉलेज में, अपने कम्युनिटी में, स्कूल में, अपने सर्कल में, अब्बा के दोस्तों में, फैमिली में, सब में हम बहुत मास्टर ब्लास्टर थे। लेकिन आजकल हमारा क्या नाम है, क्या बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, या आजकल एकदम जिंदगी ने तबाह किया हुआ है। कितने लोगों को ये लगता है? अच्छा, उनमें जितने लोगों को ये लगता है, अगर आप अपना क्या नाम है, अरे बाप रे बाप, अहमद भाई माशाल्लाह, ऑलवेज स्टैंडिंग आउट। तो जितने लोगों को ये लगता है ना, कंसिडर योरसेल्फ विथ मी, बिकॉज मुझे भी सेम लगता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप में से अक्सर लोग, जितने लोगों को ये लगता है ना, वो अगर चेक कराएंगे अपना हार्मोनल इम्बैलेंसेस, या आप स्पेशली विटामिन B12 एंड विटामिन D आप चेक करा लें, आप में से जितने लोगों को इस तरह लगता है, आई एम 90% श्योर कि आपका विटामिन B12 या विटामिन D कम होगा। तो ये केमिकल इम्बैलेंस का भी एक रीजन होता है। तो आपके बॉडी की जो केमिकल बैलेंसिंग है, उसमें भी अगर खराबी आएगी तो ऑब्वियसली योर फोकस इज गोइंग टू गेट लॉस्ट। देयर आर पीपल हु यूज टू डू लाइक योगा, योगा करते थे, सब कुछ करते थे, एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी, बिल्कुल हीमोग्लोबिन भी लो होगा तो भी ये सारे इफेक्ट्स आएंगे। कि आपकी बॉडी इज नॉट जस्ट अ फिजिकल और मेंटल स्टेट, इट इज हैविंग अ बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल और सारे स्पेक्ट्रम का कॉम्बिनेशन है बॉडी। तो उनमें कहीं भी कमी होगी तो आपके फोकस पे इफेक्ट आना 100% जरूरी है। तो आप में से जितने लोगों को इस तरह लगता है, ऑल्दो दिस इज नॉट, दिस इज जस्ट अ सिंगल क्लास, अगर मेरा पूरा कोर्स में आप शामिल होते तो मेरा एक टास्क होता है कि इस वीक आपको करा के नेक्स्ट वीक रिपोर्ट लेके आनी है कि आपका विटामिन B12 और विटामिन D क्या लेवल्स में है, और उसकी दवा ववा सप्लीमेंट्स जो भी डॉक्टर से पूछ के लेना ही लेना है। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, हेल्दी प्रैक्टिस है कि जस्ट इफ यू हैवंट गॉट इट चेक्ड इन लास्ट 6 मंथ्स, गो एंड चेक, गो एंड गेट योर ब्लड टेस्ट डन, विटामिन D एंड B12 तो मिनिमम चेक करा के आओ, या हेमोग्लोबिन भी साथ में फ्री में चेक करा लेना। ठीक है, इनमें से जो कम है उसको बराबर करो। इट विल ऑल्सो हेल्प यू रिलीज योर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ऑल्सो हेल्प यू मेंटेन फोकस। उसके अलावा मेंटल वेलबींग, मेंटल वेलबींग भाई इस पे तो बहुत बात हो चुकी है ऑलरेडी। कि मेंटल वेलबींग अच्छी नहीं होगी तो भाई दिमाग कहाँ से काम है, दिमाग में अगर भूसा भर जाएगा तो उसको गाय चरने आएगी ना। यू डोंट लाइक टू गोइंग टू हॉस्पिटल, ओके, इट्स बहुत आसान है, हॉस्पिटल आपके लिए लेके आएंगे, आप बस फोन कर दीजिए किसी डॉक्टर लाल पैथ लैब पे कहीं पे भी, वो घर में आएंगे, आपके ब्लड सैंपल लेके चले जाएंगे, रिपोर्ट ला के दे देंगे, कोई मसला नहीं है। वैसे भी वो पसंद थोड़ी होता है, मजबूरी में जाता है इंसान हॉस्पिटल यार, वैसे तो वॉशरूम जाना भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, you need to do it sometimes, sir. Okay, I don't mean to compare hospitals to washrooms. There are doctors in the
इन आवर दिस सर्कल, उस क्लास में, उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। तो मेंटल वेलबींग भी बहुत जरूरी है हमारे एक अच्छे फोकस को लाने के लिए। और मेंटल वेलबींग के लिए क्या क्या करना है, सबसे बड़ी बात ये, स्ट्रेस का आपको कंट्रोल करना है, एंग्जाइटी को आपको कंट्रोल में रखना है, एंड यू विल हैव टू बी लिविंग अ हेल्दी लाइफ फॉर इट, ठीक है। और उसके बाद अटेंशन एट द राइट प्लेस, ये लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे आपकी जिंदगी में एक चीज है जो ट्रबल कर रही है, अहमद भाई बैलेंसिंग एवरीथिंग, हाँ राइट, आई बैलेंस, मैं बहुत अच्छा बैलेंस करता हूँ, इसीलिए तो मेरा नाम अहमद है। तो खैर, जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैं एक क्या नाम है आपको बोलूँ कि आप अपने कमरे में जस्ट फोकस ऑन समथिंग विच इज ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, कि आप उसको सिर्फ देखिए, तो आफ्टर 1 सेकेंड आपको सिर्फ वही चीज बहुत अच्छे से दिखेगी, राइट। एंड दूसरी चीजें क्या नाम है दिखना कम हो जाएंगी, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। उसका एग्जाम्पल देते हैं, जब हम जमीन पे होते हैं, कारपेट पे बैठे होते हैं, फर्श पे होते हैं, तो आपको चींटियां दिखती हैं, राइट। यू सी, क्या नाम है, चींटियां बड़ी बड़ी दिख रही होती हैं, गौर से देखो जमीन पे लग के। हैज एनीवन ऑब्जर्व्ड एंट्स? चींटी, एंट, काली काली लाल लाल दोनों, काटती है तो बहुत दर्द होता है, उसको ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया किसी ने? किया है ना भाई, अटेंटिव रहो, रिस्पॉन्स दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा भाई, बस मैं गुस्सा हो जाऊंगा फिर। तो जब जमीन पे आप होते हैं ना, तो आपको चूटी भी बहुत क्या नाम है बड़ी क्या नाम है अच्छी दिखती है, राइट, बहुत बड़ी दिखती है। लेकिन आप में से आई डोंट नो एरोप्लेन में कितने लोगों ने ट्रैवल किया है, अगर नहीं भी किया है तो आप तीसरे फ्लोर पे तो गए ही होंगे घर के यार, इतनी इतनी तो ऊंचाई अल्लाह ने हम सबको नसीब की होती है कि जिंदगी में कभी ना कभी तीसरे चौथे फ्लोर पे तो गए ही होते हैं मिनिमम। बाकी जो आसमान तक गया वो तो बहुत बड़ी बात है। तो जब आप चौथे फ्लोर पे चलते हैं तो नीचे आदमी भी चूटी के मारने लगता है, क्यों नहीं लगता है कि नहीं लगता है? फॉर ऑल दोज वर्क क्या नाम है जिनको हाइट का फोबिया है वो तो नीचे नहीं देखे होंगे, लेकिन बाकी लोगों ने यकीनन देखा होगा कि जब हम उतनी हाइट से नीचे देखते हैं तो गाड़ी भी चूटी के बराबर दिखती है। और अगर हवाई जहाज से कभी नीचे देखा है तो बिल्डिंग भी चूटी की तरह दिखती है। तो राइट, तो आपका अटेंशन अब जब एकदम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में चला गया, आपके अटेंशन में बहुत सारी चीजें आ गई, तो बिल्डिंग पे अटेंशन चला गया, क्योंकि बिल्डिंग छोटी हो गई। लेकिन वही जमीन पे थे तो वो छोटी बड़ी हो गई, और बिल्डिंग तो बहुत ही बड़ी हो गई। तो ये आपके अटेंशन की राइट प्लेस पे होने की निशानी है कि आप अटेंशन जिस चीज को देंगे वो चीज ग्रो करने लगेगी अपने आप। जैसे इंग्लिश का एक बहुत मशहूर मकूला है जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी, कि व्हेन यू फोकस ऑन सॉल्यूशंस, क्या नाम, प्रॉब्लम्स, शिट शिट ग्रोस, व्हेन यू फोकस और योरसेल्फ यू ग्रो। समझ रहे हैं, जब हम खुद पे फोकस करते हैं हम बढ़ते हैं, जब हम शिट पे फोकस करते हैं तो शिट बढ़ने लगती है। व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स इंक्रीज, व्हेन यू फोकस ऑन सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस इंक्रीज। ये अपने आप बहुत बड़ी चीज है। और हमारे दरमियान कुछ पेंटर्स एंड आर्टिस्ट भी हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम माइन्यूट डिटेल्स में फंसते हैं तो कई बार पूरी पेंटिंग खराब कर देते हैं, और जब हमारी पेंटिंग के लिए हम आउट फोकस हो जाते हैं, जूमिंग आउट ऑफ द कैनवस हो जाते हैं, तो हमारे लिए आसानियां हो जाती है। तो अटेंशन एट द राइट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर और भी बात की जा सकती है। अच्छा चलिए, अब ओवर थिंकिंग वाले, सारे ओवर थिंकिंग वाले काफी भाई थे, तो ऑल दोज जीनियस माइंड्स जिनको मैंने कंग्रेचुलेट किया था कि ये द प्रॉब्लम ऑफ पोटेंशियल ग्रेट माइंड्स। अच्छा ठीक है, ये पोटेंशियल ग्रेट माइंड्स हैं, क्यों? क्योंकि भाई ग्रेट माइंड बन जाएंगे तो फिर वो ओवर थिंकर थोड़ी रह जाएंगे, राइट। तो इसलिए इसका भी समझना जरूरी है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आप एक पोटेंशियल तो जरूर है ग्रेट माइंड के, लेकिन उसके बीच में एक दीवार है या एक क्या नाम है हर्डल है जिसे आपको तोड़ना है या जिसे आपको क्रॉस करना है, एंड दैट इज ओवर थिंकिंग। एंड बिलीव मी इट कैन बी डन, इसके लिए बहुत आसान एक टेक्निक है, बट विद प्रैक्टिस एंड टाइम वो आ जाएगी ना, तो आप ओवर थिंकिंग अपने आप क्या नाम है मैनेज कर लोगे। अच्छा, जीनियस पीपल क्यों इसके लिए फॉल करते हैं? जितने जहीन लोग होते हैं वो ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? किसी को कुछ समझ में आता है? लाइक इन शॉर्ट, एक सेंटेंस में कोई बोल सकता है? इफ यू वांट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या लगता है व्हाई जीनियस पीपल ओवर थिंक? बिकॉज दे थिंक मोर। क्या बात है यार, ये तो बस एकदम जीनियस वाला जवाब दिया डॉक्टर साहब ने। बिकॉज दे आर मोर क्रिएटिव, हाँ हाँ हाँ, समथिंग कमिंग अप, राइट, वाह ठीक है भाई, क्रिएटिविटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली दिमाग ज्यादा डायरेक्शन में सोच रहा है, ज्यादा डायरेक्शन में सोच रहा है तो ज्यादा सोचेगा, बिल्कुल अच्छी बात है। मल्टीपल मल्टीपल सॉल्यूशंस या मल्टीपल मल्टीपल सोल्यूशंस, पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेवकूफ आदमी है, वो सोचता है यार एक सोल्यूशन है, मुझे यहाँ से वहां जाना है, चलो निकलो घर से चलते हैं। अब एक बहुत जो जीनियस आदमी होगा वो सोचेगा यार चलो घर से निकलूंगा, राइट लूंगा कि लेफ्ट लूंगा, गाड़ी से जाऊंगा कि पैदल जाऊंगा, हवाई मोड़ के जाऊंगा, कुछ करूंगा, चलो एक नई गाड़ी इन्वेंट करते हैं, हाइपरलूप इन्वेंट करते हैं, उससे जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, परफेक्शन के मारे भी हैं कुछ लोग। हाँ बिल्कुल सही, डॉक्टर साहब ने भी एक अच्छी पकड़ा, दे वांट टू यूज द टाइम फॉर मोर वर्क, हाँ ज्यादा काम करना। परफेक्शन इज द बिगेस्ट हर्डल फॉर द जीनियस माइंड्स। ये ओवर थिंकर्स का और परफेक्शन का चोली दामन का साथ है एकदम। उर्दू में मुहावरा बोलते हैं ना भाई, एकदम दे आर ऑलवेज टुगेदर। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं वो परफेक्शनिस्ट होते हैं ज्यादातर, और जो परफेक्शनिस्ट होते हैं वो ओवर थिंकर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन डिटेल्स को भी देख रहे होते हैं जो बाकी लोग नहीं देख रहे होते हैं। भाई सामने वाले को आपसे सलाम करना था, आपने सलाम का जवाब देना था। अब एक परफेक्शनिस्ट क्या करेगा, मेरे हाथ की पोजीशन कैसी होनी चाहिए,
मेरी क्या नाम है सलाम की आवाज में टोन कैसी होनी चाहिए, मेरी क्या नाम है फीट मूवमेंट कैसा होना चाहिए, इतना सब कुछ सोचेगा कि बेचारा सलाम ही नहीं कर पाएगा। दे आर नेवर सेटिस्फाइड। सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलेगा सेटिस्फैक्शन, जब दिन रात यही सोचते रहोगे कि यार ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, या ये ऐसे करूं, ये वैसे करूं। तो खैर परफेक्शनिज्म इज इम्पॉसिबल आइडियल। आदमी को परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। परफेक्शनिज्म इज नॉट अ गोल, परफेक्शनिज्म इज अ वे। आप चलते रहिए, यू जस्ट स्टार्ट डूइंग एनीथिंग, फिर करते 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 वो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग बिफोर एवरी टास्क, आप टास्क कर लीजिए, उसके बाद दोबारा जब करने जाइएगा तो एक चीज सही कीजिएगा, फिर तीसरी बार करने जाइएगा तो एक चीज सही कीजिएगा। उसका एक अपना एक पूरा सोल्यूशन है कि किस तरह लेके आया जाता है। तो ओवर थिंकर्स के लिए बहुत ज्यादा सोल्यूशन है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो स्टिमुलेशन इन ब्रेन डिफ्यूजेस एक्शन। अच्छा, ये आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत मतलब एक इस तरह इस्लामी अक़वाल भी आते हैं और कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात भी आते हैं कि इंसान को जो इरादा उसने नियत कर ली है कोई काम करने की, तो उसको चिल्ला चिल्ला के ऐलान नहीं करना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस, कि व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग, बिफोर डूइंग इट डोंट स्प्रेड इट बाय योर वर्ड्स कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। हैव यू हर्ड ऑफ इट? टाइप यस और नो, और डू यू बिलीव इन इट? डोंट शो योर सक्सेस। सही सही, यस यस, ओके ठीक है, मतलब आप लोगों को पता है चीज। तो वही स्टिमुलेशन इन ब्रेन, आपके ब्रेन का जो एक न्यूरॉन्स हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड, ओके बुशरा, बुशरा बाजी को नहीं समझ, नहीं पता है ये चीज। ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन कि हमारा ब्रेन जो है, मैं उनको साइंटिफिक तरीके से समझा देता हूँ और आप सबको भी, कि हमारा ब्रेन रियल और क्या नाम है वर्चुअल, इन दो चीजों में डिफरेंस समझ नहीं पाता है। अगर आपने सोच लिया कि मैं फला जगह गई थी या गया था और आप चले गए, इन दोनों चीज में ब्रेन के अंदर जो स्टिमुलेशन होगा वो सेम होगा। इफ यू क्लोज योर आईज एंड इमेजिन योरसेल्फ वॉकिंग इन अ गार्डन विद फुल ऑफ फ्लावर्स एंड स्मेल्स एंड एवरीथिंग, तो जो चीज आप फील करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर इमेजिनेशन स्किल, वो बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा रियल में आपको ब्रेन को लगेगा कि आप हैं वहां पर। तो आप जब कोई काम करने को बहुत ज्यादा सोचते हैं तो फिर आप वो काम करते नहीं। इस कहने का मतलब ये है कि ब्रेन जब बहुत ज्यादा सोच लेता है तो वो जो एनर्जी क्रिएट हुई थी फॉर दैट टास्क, आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे चाय बनानी है, ठीक है, मैं चाय का एग्जांपल बार बार ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी चाय पिया, आई एम रियली सॉरी गाइस। हाँ, लेकिन समझ में आएगा, कोई बात नहीं, सब लोग चाय या कॉफी भी बनाते हैं। अगर आपने सोच लिया कि मुझे चाय बनानी है, ठीक है, यू आपको एक टास्क मिल गया। अब या तो आप उठ के चाय, वो एक एनर्जी बॉडी ने क्रिएट कर लिया, आपके माइंड ने एक एनर्जी क्रिएट की कि आप चाय बनाने के लिए मुझे ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और मैं ये काम करने जा रहा हूँ। अब आप बैठ के अपने दिमाग में सोचते रहे, हाँ 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 चाय की खुशबू, वो भाप उड़ती होगी, और मैं जब चूल्हा जलाऊंगा और सटाक से आवाज आएगी, लाइटर जलाऊंगा, उसमें दूध डालूंगा, पानी डालूंगा, जो भी डालूंगा, चीनी डालूंगा, नहीं डालूंगा, गर्म करूंगा, भाप उठेगी, खुशबू आएगी। इतना सब इमेजिन करते भी आप लोगों ने कितने मेरे साथ सुनते सुनते इमेजिन कर लिया होगा। तो ये जो आपकी बॉडी ने एनर्जी क्रिएट की थी ना, वो एनर्जी इस सब को प्रोसेस में फील करने में, सोचने में खत्म हो गई। अब आधी एनर्जी वैसे ही क्या नाम है, क्या नाम है, खत्म हो गई कि क्या नाम है, कि मुझे चाय बनानी थी। अब उसके बाद आप उठेंगे तो आप ऑलरेडी आपके दिमाग को जिसे क्या बोलते हैं, उसको एक्सटेसी मिल चुकी है, उसको फील आ चुकी है पूरी चाय की। तो अब वो शायद चाय पीने नहीं जाएगा, वो शायद चाय बनाने नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो फील ले ली, उसको वो जो चीज मजा मिलना था चाय बनाने का वो उसने ले लिया ऑलरेडी। तो वो एक्चुअल में वो काम करने में मुश्किल होगा। तो इसलिए होता है कि ज्यादा सोचने से काम नहीं होता है। इसीलिए बार बार आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आप चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे हैं, तो वो जो एनर्जी माइंड ने क्रिएट की होती है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड, हमारा दिमाग बहुत शार्प है। अल्लाह ताला ने, लाइक ह्यूमन इंटेलेक्ट इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट थिंग एवर क्रिएटेड, अल्लाह ताला ने जो भी बनाई, ठीक है। ओवर थिंकिंग इन ब्रेन एंड डे ड्रीमिंग, ख्याली फ्लावर बहुत सेम। नो 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 यार, ख्याली फ्लावर तो बहुत अच्छी चीज है, बनाया करो कभी कभी, लेकिन दिन भर ना बनाया करो। ओवर थिंकिंग ये है कि आप टास्क को लेकर सोचने लगे, ठीक है। बट ब्रो, डज दैट मीन वी शुडंट इमेजिन अ गुड फ्यूचर और गुड रिजल्ट्स? नो, वी शुड ऑलवेज इमेजिन गुड फ्यूचर एंड गुड रिजल्ट्स, लेकिन उसको हरदम ऐलान नहीं करना चाहिए एंड हरदम नहीं सोचना चाहिए। मैं उसका सबसे बेसिक सोल्यूशन बता देता हूँ ना कि आपको करना क्या है ओवर थिंकर्स के लिए। टेक्निक, फिक्स अ टाइम, बहुत आसान है। दिन भर में जितना ओवर थिंकिंग करनी है, जैसे ही आपको टास्क करने बैठे और अचानक आपको ख्याल आना शुरू हो गया, डे ड्रीमिंग जिसे कहते हैं, वो भी आने लगी या ओवर थिंकिंग शुरू हो गई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अपने दिमाग को क्या बोलना है, अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ, एक काम करता हूँ, अभी 12 बज रहे हैं, मैं 12 बजे से 1 बजे तक मस्त पढ़ूंगा और 1 बजे बैठ के सोचूंगा और ऐसा सोचूंगा कि दुनिया ने क्या सोचा होगा। बस अपने दिमाग को ये समझाना है। दिन में एक टाइम फिक्स कर लो कि ये टाइम मेरा ओवर थिंकिंग का है।
अब आपको हो सकता है लग रहा हो मजाक हो भाई, लेकिन मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा पाथ ब्रेकिंग और बहुत जबरदस्त ये टेक्निक है कि दिन में एक टाइम रात के 11 बजे 12 बजे सुबह के कोई भी एक टाइम फारिग टाइम कि हाँ मैं 5 मिनट सोचूंगा, और 5 मिनट में ऐसा सोचूंगा कि दुनिया ने क्या सोचा होगा, और उसमें सोच के फाड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, जो करना होगा सब कर डालूंगा। अहमद भाई ने लिखा है अवॉइड ऑल्टर एक्सेप्ट अडेप्ट। अब भाई ये तो बहुत हैवी चीज लिख दी, अब मैं क्या बताऊं। इसका एक्सप्लेनेशन अहमद भाई से लीजिएगा आप लोग। सो ओवर थिंकर्स के लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है? फिक्स अ टाइम ऑफ ओवर थिंकिंग। जब आप काम कर रहे हैं उस वक्त ब्रेन को बोलिए करूंगा ओवर थिंकिंग, थोड़ा रुक जा, काम कर लेता हूँ, आधे 1 घंटे बाद ओवर थिंकिंग करूंगा। बिल्कुल मजा ही मजा, कोई टेंशन ही नहीं। राइट, ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ये टेक्निक समझ में आएगी, आई कि नहीं? यहाँ भाई टाइप में बॉक्स कर दो, चैट बॉक्स में टाइप कर दो, इज इट पॉसिबल या वही नॉट। मैं बोलूंगा अभी आप मत सोचो, बाद में सोचना तो क्या मसला है भाई, काम कर लेता हूँ फिर सोचते हैं। काम पे फोकस करेंगे ना। और एनीबडी एल्स इसमें कुछ राइट इन द चैट बॉक्स, यू अंडरस्टैंड, इज इट पॉसिबल? नहीं होता, ओके कराएंगे इंशाल्लाह। मुझे नहीं समझ आया बिकॉज प्रैक्टिकली इवन इफ आई डू गेट रैंडम थॉट्स। अरे तो एक दिन में थोड़ी, रोम वाज नॉट गोइंग टू बिल्ड इन अ डे, राइट? तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं होगा भाई, आप करा, इसके भी मैं बता दूंगा आपको आगे और भी कैसे कर सकते हैं। इन द एंड आप अगर पूछेंगे तो इंशाल्लाह। तो आपको सिर्फ एक वो अपने ब्रेन को ये बोलना कि ठीक है हम सोचेंगे यार, टेंशन मत ले, थोड़ा रुक के सोचेंगे। उस अभी काम कर लेता हूँ, अभी ईमेल लिखना, ईमेल लिख लेता हूँ। आप टास्क सामने क्या है, अगर कोई टास्क नहीं है इंपॉर्टेंट आपके सामने, ओवर थिंकिंग अकेले अपने आप में रिमूव नहीं होगी। ओवर थिंकिंग को रिमूव करने के लिए एक्शन इज द बेस्ट थिंग। हाँ आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिल्कुल। ये वर्किंग आवर्स में आप क्या नाम है, अ, अपने जो आपने बताया कि आउज़ु बिल्लाह पढ़ते रहिए, शैतान के वसवसों से बचते रहिए। शैतान भी ओवर थिंकिंग भी लेके आता है इंसान को, बिल्कुल। तो आप जिक्र कर सकते हैं अपने आप को। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो ओवर थिंकिंग से नहीं बच सकते आप। ओवर थिंकिंग तो मतलब खाली दिमाग तो शैतान का घर ही है भाई। ठीक है, तो इफ यू आर एम्प्टी हेडेड देन यू विल ऑब्वियसली ओवरथिंक। इफ यू आर डूइंग अ टास्क एंड ओवरथिंकिंग इज कमिंग बिटवीन, ओके से योर माइंड ओके अभी टास्क कंप्लीट करके ओवरथिंक कर लूंगा 5 मिनट, बस 5 मिनट टाइम देकर ओवरथिंकिंग करो। जब आप किसी अपने माइंड को ट्रेन करोगे कि भाई 5 मिनट घड़ी देख के ओवरथिंकिंग करने वाला हूं मैं, आपका माइंड अपने आप ट्रेन होगा। भाई माइंड इज लाइक योर, मतलब आपका ही है भाई, वो आपके लिए आया हुआ है। सो इफ यू ट्रेन इट, इफ यू टेल हिम, ही विल एक्सेप्ट इट, ही और शी जो भी है। अब आपका माइंड ही और शी है, इस पर डिबेट नहीं करना, या ईट और दे है तो भी मुझे नहीं मालूम। ओके, तो डिजिटल ओवरफ्लो सबका है मसला है। एवरीथिंग इज क्या नाम है, बहुत जरूरी चीज है कि इसको एड्रेस करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर लाइक एक्सपीरियंसिंग दिस एंड समवेयर वी आर ट्रबल्ड बाय दिस। ठीक है, तो जितना टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट दुनिया बढ़ती जा रही है उतनी चीजें बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया, जिसमें हमारा प्यारा और अजीज सरीन एक्स ट्विटर, या करंट प्रेजेंट एक्स जो है, वो एक्स है, बल्कि एक्स ट्विटर होके भी एक्स रह गया। वो बताओ क्या मतलब कमाल है उसमें। तो उसमें भी हम टाइम कितना बुरी तरह स्पेंड करते हैं और कितना हमारा टाइम वेस्ट होता है। और स्क्रीन टाइम हमारे क्या नाम है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स को रिड्यूस करती हैं, राइट। उससे एक चीज समझ में आती है कि जब आप एक छोटी स्क्रीन को, जो 5.2 इंचेस की होगी, या मेरी तो और छोटी है, मेरी तो ऑलमोस्ट 4.4 इंचेस की स्क्रीन है मेरी, आई थिंक 4.4 या 5 है। तो क्या नाम है, जितनी स्क्रीन आपका, स्क्रीन पे आप जब फोकस करोगे तो बाहर की दुनिया से आपका फोकस हट जाएगा, राइट। तो आप स्क्रीन टाइम पे जितना फोकस करेंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन क्योंकि छोटी जो में आ रही है, आप उसमें बहुत ज्यादा देख नहीं पाओगे, तो बहुत सारी चीजें आप ओवरलुक करना शुरू कर दोगे। तो ये चीज रेप्लिकेट होती है, जब आपकी आदत ये पड़ जाएगी ना, तो आप रियल लाइफ में भी जब कोई चीज ऑब्जर्व करोगे तो बहुत माइन्यूट चीजें देखने लगोगे। वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में भी यही हो जाएगा कि आप, कोई बंदा पूरा ड्रेस अच्छा पहन के आया होगा, एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग ओनली एट हिज वॉच और एट हिज स्लीपर्स, और मे बी नेकलेस, और मे बी बाल, और मे बी समथिंग, कुछ भी। ओवर थिंकिंग वाली साइड 1 मिनट में बताना, तो क्या बताना, चलो एंड में बताएंगे, ठीक है, जो भी होगा। तो इसके लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आपको, डिजिटल फास्टिंग। रोजा तो अपन सब रखते हैं ना, रोजा रखते ही हैं अपन, तो मैं भी रखता हूँ। तो एक डिजिटल फास्ट बनाइए वीकली, कोई भी, जिसका जितना ज्यादा आपको लगता है मसला है। इफ समवन कैन बेयर 1 वीक, सम देयर आर सम असलाफ एंड देयर आर सम ग्रेट पीपल इन हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री, जो चुप कर रोजा रखते थे, क्योंकि उस जमाने में ज्यादा बोलना वाज कंसिडर्ड एज डिस्ट्रॉइंग फोकस। वो आज भी 100% है, बट इट इज बेटर देन डिजिटल ओवरफ्लो। ज्यादा बोलने से भी फोकस लॉस होता है, तो लोग सुकूत का रोजा रखते थे। सुकूत का रोजा एग्जिस्ट इन सम बुक्स, मतलब इट इज नॉट इस्लामिक, बट लोगों ने इसको एक प्रैक्टिस बनाया था अपने आप को फोकस इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को इबादत में इखलास लाने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए। आज भी एतिकाफ में अगर आप जाएं तो बहुत सारे एतिकाफ की चीजों में, मुबाह चीजों में, सुन्नत तरीकों में, कि एतिकाफ में जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना, ओनली काम की चीज बोलना, नहीं तो नहीं बोलना, खामोश रहना।
तो ये है खामोशी का जो रोजा के कॉन्सेप्ट है, उसको लेके आइए डिजिटल फास्टिंग में, कि अब रोजा आपने रखना है पूरे एक दिन का, कि भाई इस दिन पूरे दिन में और बिलीव मी वन, एक चीज का ट्रस्ट बैठा लेना है कि इफ यू डोंट गेट एन इन्फॉर्मेशन यू विल बी वेरी परफेक्ट, कोई मसला नहीं होगा आपको जिंदगी में। अगर एक दिन व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देखेंगे, एक दिन ट्विटर नहीं देखेंगे, एक दिन इंस्टा नहीं देखेंगे, एक दिन शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, एक दिन नहीं देखेंगे, तो सब कुछ आपका अच्छा चलेगा, कोई मसला नहीं होगा, यू कैन लिव योर लाइफ। स्पेशली अगर आप घर पे रहने तो कोई मसला ही नहीं है। डू समथिंग, एक दिन बस, एक ही दिन की तो बात है ऐसी, अगर आपने तय कर लिया कि मैं एक साल तक नहीं देखूंगा तो कभी वो दिन आएगा ही नहीं। हाँ, अपने माइंड को छोटे टारगेट दोगे, अचीवेबल टारगेट दोगे, यू विल ऑलवेज अचीव इट। वर्क विदाउट इंटरनेट डाउन, तो वर्क करना अलग चीज है भाई। मैंने कब कहा इंटरनेट से दूर हो जाइए, मैं तो कहाँ कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ डिजिटल फास्ट कीजिए। डिजिटल फास्ट में क्या है, आपने ट्विटर से फास्ट कर लिया, जो चीज ट्रबल दे रही है उससे फास्ट करना है। अगर आपका काम ही ट्विटर पे है तो बात ट्विटर से क्यों डिएक्टिवेट करोगे यार। तो वो मसला थोड़ी है, आपको जो चीज ट्रबल दे रही है उससे आपको फास्ट करना है, उससे आपको दूर रहना है, कि भाई पूरा सुबह से शाम तक मैं उसको नहीं करने वाला हूँ। यार हम खाने से रुक सकते हैं यार, वी, दैट इज अवर लाइफ लाइन, हम खाना पानी रोक सकते हैं अपना, तो ये नहीं रोक पाएंगे। माइंड कन्विंस करना है माइंड को, और इसमें भी नियत अच्छी रहे भाई, अपने आप को इंप्रूव करने की नियत है। कीप योर टारगेट्स एंड अटेंड। इसमें वीकली एक दिन प्रैक्टिस कीजिए डिजिटल डिटॉक्स का। आप कार्ल डिपोर्ट के, आप एक बुक क्या, डीप वर्क, बहुत बेहतरीन बुक है, इफ एनीवन ऑफ यू वांट्स टू रीड इट, यू कैन रीड इट, इट हेल्प्स यू इन इंक्रीजिंग अटेंशन। और वो क्या नाम है उनका, हाँ बिल्कुल, रीनाइजेंस, रीनाइजेंस बाजी जो भी कह रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये मैं भी, हमारे मेरे साथ भी ये होता है, और हम जब घर पे होते हैं तो हमारे अब्बा भी हमारे पर यही डंडा मार मार के, क्या नाम है, इस तरह का कर्फ्यू वगैरह सब कुछ लगवाया हुआ है। एक जमाना जब नया नया इंटरनेट आया था तो ही यूज टू स्विच ऑफ द वाईफाई थी, कि अब कोई कुछ करेगा ही नहीं। और हम लोग का फोन सबमिट करने का भी एक सिस्टम चला था कुछ दिन तक घर पे। खैर अब तो नहीं, अब तो अकेले रहना पड़ा, तो अब तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं। तो लेकिन बिल्कुल ये सब है, आप अपना फोन रख दीजिए, दूर रख दीजिए, लिव अ लाइफ इन नेचुरल वे। जैसे एक हैबिट है, मैंने एक हैबिट बनाई हुई है कि मैं नमाज पढ़ने कभी भी जाता हूँ तो फोन लेके नहीं जाता हूँ कभी भी, चाहे मैं कितनी भी दूर जाऊँ नमाज मस्जिद पढ़ने। एंड देर वॉज यू, अभी तो क्या नाम है, उस तरह नहीं, तो आपने इस चीज की हैबिट को जैसे अप्लाई किया तो यू स्टार्ट स्लोली स्टार्ट टू लर्न कि भाई यार जिंदगी बिना फोन के भी चलती है, कोई मसला नहीं है, हरदम मैसेज देखना जरूरी थोड़ी है, हरदम व्हाट्सएप पे रेस्पॉन्स आ जाना, कोई इमीडिएटली इट्स नॉट नेसेसरी टू बी ऑलवेज ऑनलाइन, कोई मसला नहीं है, बल्कि आप जिंदगी और अच्छी इंजॉय करेंगे। एंड अपना मी टाइम बनाइए, रात के टाइम में 1 घंटा सोने से पहले फास्ट का टाइम है भाई। स्लीपिंग से, जैसे एक बहुत अच्छी हैबिट होती है ना कि आप स्लीपिंग से, अगर हम स्लीप की मास्टर क्लास कभी करेंगे तो उसमें ये सब बातें आराम से आएंगी, कि अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं तो नींद से 1 घंटा पहले आपको फोन, कोई भी क्या नाम है, करना होगा बेटर। लाइफ विदाउट फोन वॉज बेटर, बचपन बचपन इज ऑलवेज बेटर, बट लाइफ विदाउट फोन वॉज बेटर और नॉट, इट्स डाउटफुल क्वेश्चन। क्योंकि फोन की भी जरूरत है, हर चीज टेक्नोलॉजी, यू कैन नॉट गो विदाउट इट नाउ, राइट, मतलब यू हैव टू यूज इट समवेयर एटलीस्ट। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज इट। आप ये कहते हैं कि लाइफ विदाउट तलवार वॉज बेटर, लाइफ विदाउट एटॉम न्यूक्लियर एनर्जी वॉज बेटर, तो इस तरह कहने से तो फायदा नहीं होगा ना। लॉन्गेस्ट आई हैव डन वर्क इज फॉर 4 hours विद कंप्लीट फोकस। हाँ, तो ये तो बहुत, इट्स लाइक अ रिकॉर्ड थिंग, 4 hours का कंटिन्यूस फोकस मेंटेन रखना इज नेक्स्ट टू यू, लाइक वेरी बिग थिंग। इंसान का एक नेचुरल फोकस की स्ट्रेंथ होती है 30-35 मिनट्स तक, उससे ऊपर नहीं होती नेचुरली एक फोकस की। इसलिए हर 30, तो वो जो पोमोडोरो टेक्निक होती है ना, कि हर 30-35 मिनट्स के बाद आपको क्या करना होता है, यू हैव टू टेक अ ब्रेक। ठीक है, तो जो डिजिटल इंप्रूविंग फोकस के ऊपर क्या करनी चाहिए, गोल सेटिंग करनी चाहिए, प्रियोरिटाइजेशन करनी चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, आपको प्रायोरिटी मैनेज करनी है, टाइम मैनेज करनी है। हम अपनी मास्टर क्लास के टाइम से 20 मिनट ऊपर जा चुके हैं। अरे यार जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये देखो ज्यादा बोलने का मसला है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक, प्रायोरिटाइजेशन करनी है। इंप्रूविंग फोकस के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये उनमें चीजें हैं। आप माइंडफुलनेस और मेडिटेशन कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छा, अभी तक इतना बता दीजिए, हमने जो प्रॉब्लम समझे और जो चीजें समझी, हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज, जस्ट टाइप एसपी और सेम पेज इन द चैट बॉक्स, आई वांट टू सी। और नेचर कनेक्ट, आज के लिए मैं आपको 5 टेक्निक्स दूंगा सिर्फ, कि इंप्रूविंग फोकस के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं अपने। ठीक है, गोल सेटिंग कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस कर सकते हैं, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, नेचर कनेक्ट। ठीक है, सेम पेज। ओके, नेक्स्ट गोल सेटिंग। गोल सेटिंग्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ बातें बताई हैं, तो इन शॉर्ट में निकलते हुए, भगाते हुए निकलेंगे यहाँ से, कि आपको अपने गोल्स इन लाइफ को समझना है, और अपनी लाइफ के वैल्यूज एंड मोटिवेशंस को समझना है, कि आप अपनी लाइफ से क्या लेना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। और ये इसमें मसला हो रहा है तो गेट हेल्प फ्रॉम सम वन हु नोज यू वेल, और समवन हु कैन हेल्प यू वेल इन लाइफ। तो वो आपके लिए गोल सेटिंग में है, कई बार आप खुद से नहीं कर पा रहे होते हैं, तो समवन, इट्स ओके टू टेक हेल्प, so you can take help from someone elder or someone who's experienced in the field। वो आपको आपकी गोल सेटिंग में हेल्प दे देंगे, तो डायरेक्शन दे देंगे। कई बार इंसान खुद से डायरेक्शन नहीं ढूंढ पाता,
इसीलिए इंसान को हमेशा बड़ों की, अपने उस्ताद की गाइड की जरूरत होती है। जो इंसान 20 साल में अपनी मेहनत से कोई चीज सीखेगा ना, एक उस्ताद उसे 15 मिनट में सिखा सकता है। इसीलिए वैल्यू ऑफ अ गुड टीचर इज ऑलवेज बेटर देन पूरी समुद्र में तैरते रहना अपने आप से। डाइविंग इनटू द ओशन अलोन एंड विद उस्ताद इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो उस्ताद बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। तो गोल सेटिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने से कर सकते हैं तो वेरी गुड। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट एंड यू हैव बीन स्ट्रगलिंग विद इट, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट समवन हु इज एक्सपर्ट इन हेल्पिंग यू सेट आउट योर गोल्स बेस्ड ऑन योर इंक्लिनेशंस एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हर तरह के गोल्स सेट करने चाहिए कि आप 3 महीने में, 4 महीने में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, और लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 40 ईयर्स प्लान तक क्या है अपनी जिंदगी में। कम से कम एक एक अपना एक डेली रेगुलर के तो गोल्स होते ही होते हैं, कुछ एक मंथली 3 मंथ से लेके क्वार्टर ईयर ऑफ अ ईयर का एक गोल होना चाहिए लाइफ में। उसके बाद 3 साल का मिनिमम एक गोल होना चाहिए, 5 साल का भी हो अगर हो जाए तो अच्छी बात है, एक डेकेड का गोल होना चाहिए और एक 40 ईयर्स ऑफ लाइफ का गोल होना चाहिए। बाकी बीच में अल्लाह की मर्जी है, जब मौत आनी होगी आ जाएगी, लेकिन आपका अपना काम क्या है, कम से कम ये 3-4 चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। एंड इफ इट्स रिटन ऑन समवेयर इट्स वेरी गुड। एक्चुअली में रिटर्न ही होना चाहिए आपके पास कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। एट द आप में से अक्सर लोग, यू आर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25, which is same age group as mine. Some of you are माशाल्लाह elders, तो जिनसे हम खुद सीख रहे हैं, जो नेक्स्ट सीनियर एज ग्रुप के हैं। तो आप लोगों को, हम लोगों को हमेशा अपनी लाइफ में ये रखना चाहिए कि एटलीस्ट 20 ईयर्स अहेड तक हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, आफ्टर 40 हम अपनी जिंदगी को कहाँ देखते हैं और कहाँ कंट्रीब्यूट करते हुए देखते हैं, कहाँ सर्विस देते हुए देखते हैं, कहाँ दुनिया में खड़े हुए देखते हैं, क्या हम दुनिया को कुछ दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, या देंगे तो कहाँ देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। उस तरह का गोल जरूर सेट करें लॉन्ग टर्म्स में, ठीक है, और शॉर्ट टर्म में तो करेंगे आप। उसके बाद प्रायोरिटी की बात आती है। ठीक है, प्रायोरिटी मैनेज करना बहुत जरूरी है कि जैसे हमने कहा ना कि आप एक साथ 3-4 काम आ जाते हैं, कौन सा काम करेंगे, ये वाला करेंगे वो वाला करें, ये मसला आदमी को हमेशा फंसता है। तो उसके लिए आइजनहावर मैट्रिक्स बहुत अच्छी चीज है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस मैट्रिक्स बिफोर? जस्ट टाइप फास्ट यस नो, यस और नो, नो यस, दो ही लोगों ने, बाकी सब लोग नो नो नो। और भाई 4-5 रिस्पॉन्स है सिर्फ, नो 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 नो। अच्छा ठीक है, एक मेजोरिटी मैं ये मान ले रहा हूँ नहीं देखी है। ठीक है, ये बहुत पावरफुल मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में देखें एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको, कर्व। मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है मेरा कर्सर दिख रहा है? यस और नो, एनीवन? यस, ठीक है चलो। तो आप देख रहे हैं ये 0 पॉइंट है, इस तरह ऊपर जा रहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो रहा है, दिस क्वाड्रेंट, एंड ये नीचे जा रहा है तो इंपॉर्टेंस कम हो रही है, राइट। और उसके बाद ये कर्सर इधर राइट में जा रहा है तो ये अर्जेंसी कम हो रही है, नॉट अर्जेंट टास्क। और इधर जा रहा है तो टास्क अर्जेंट हो रहा है, यानी इधर टाइम फ्रेम डिसाइड हो रहा है कि टास्क में अर्जेंसी कितनी है, और इधर इंपॉर्टेंस डिसाइड हो रही है कि कोई भी काम करने वाला है तो उसमें काम करने की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो अब 4 क्वाड्रेंट्स बन गए। ये काम कौन से हैं सारे, जो अर्जेंट भी हैं इंपॉर्टेंट भी है, समझ गए। इस क्वाड्रेंट में सारे काम कौन से आएंगे, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। इस क्वाड्रेंट में कौन से काम आएंगे, ये इंपॉर्टेंट तो है मगर अर्जेंट नहीं है। और इस क्वाड्रेंट में जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है नीचे वाला, इसमें कौन से काम आएंगे, इसमें अर्जेंट तो होंगे वो काम लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। ठीक, और इस क्वाड्रेंट में क्या आएंगे, जो ना ही अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है, यानी बिल्कुल ही फिजूल काम है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक काम है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है। तो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम ऐसे होते हैं जनरली ये आपको करवा ही देते हैं काम, इनमें आदमी फेल नहीं होता जनरली। जैसे चूल्हा जल रहा है, चूल्हा बुझाना है, तो चूल्हा बुझाना है तो अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, टूटी का नल खुला रह गया है, नल की टूटी खुली रह गई है, या योर टैप इज ऑन, तो उसको बंद करने जाएंगे तो ये अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है। मैं बहुत बेसिक से एग्जांपल उठा रहा हूँ, उसके बाद आप और लेके जा सकते हैं। कल एग्जाम है तो कल एग्जाम देना ही है, तो अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है, तो आप देंगे ही देंगे। ठीक है, तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेने जाना है, तो अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये सारे काम जनरली इंसान फौरन करता है और ये उसके ऊपर प्रेशर होता है, इन कामों में प्रेशर है, यू कैन फील इट। ये जरूरी भी है और अर्जेंट भी है, उसी वक्त करना है, डोंट हैव एनी अदर चॉइस। ठीक, तो इन कामों को आदमी जनरली कर लेता है, तो इन पे मैं ज्यादा मैं, लेकिन इनको तो आपके सामने कभी आया तो ये छोड़ना नहीं, नहीं तो ये आपको जिंदगी को हानि पहुंचा। दिस अलोन आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू हार्म इमीडिएटली, तो इनको कभी भी छोड़ना नहीं। ये तो हो ही जाते हैं इंशाल्लाह, और सब लोग कर ही लेते हैं। उसके बाद एक ये काम है नीचे वाला, जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर अचानक अभी आपको कॉल आ गई किसी फ्रेंड की, राइट, किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया। जैसे कुछ लोग आज एब्सेंट हैं इस क्लास में, तो उनको मुझे नहीं पता क्या अर्जेंट या नॉट इम्पोर्टेंट या क्या टास्क आया, एंड व्हाई दे डिडंट कम आफ्टर इवन रजिस्टरिंग। तो इन कामों को अपने आप को कहाँ गया कर सकते, इन कामों में समझना है कि हमें किस तरह से अपने आप को नेविगेट करना है कि ये काम अर्जेंसी मांगेंगे। हम घर को निकले थे, फला जगह जा रहे थे, अचानक किसी ने बुला लिया, तो अब हमारे टास्क के बीच में एक अर्जेंट चीज आ गया, अचानक कोई मिलने आ गया, तो उनसे नेविगेट करना है, अच्छे से बात करनी है, वो करके रास्ता निकाल के अपने असल काम पे जहां जा रहे थे वहां जाना है।
तो इनको हमेशा क्या करना है, इनको मिनिमाइज करना है, इनमें टाइम कम देना है, और टाइम कम देने के साथ साथ इनको नेविगेट करते हुए आगे बढ़ना है कि किस तरह हम इस क्वाड्रेंट से ज्यादा टाइम बोरो करके, अरे क्या हो गया यार, वाई एम आई क्लिकिंग, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि इससे टाइम निकाल के कहाँ ट्रांसफर करना है, इधर, कि जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर एग्जाम आपका 1 साल बाद है, या मिसाल के तौर पर आपकी लाइफ के जो भी गोल्स आपने डिसाइड किए, वो क्या नाम है आपके, क्या नाम है, अरे वाह, व्हेन यू हैव एग्जाम्स ड्यूरिंग वेडिंग, हाँ तो भाई वेडिंग तो अर्जेंट है लेकिन एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तो इस काम में से ट्रांसफर कीजिए अपना वक्त, किधर से उधर, अपने आप को इधर से उधर फिक्स कीजिए कि ठीक है, अगर 4 घंटे वेडिंग में देने हैं तो फिर 8 घंटे एग्जाम में दे देंगे, एग्जाम की तैयारी, या कम से कम इक्विवेलेंट करें, ठीक है। तो अपने आप को नेविगेट करना है फ्रॉम द अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट टास्क टू इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट टास्क, ये क्रॉस लेके जाना है आपको। क्रॉस लेके क्यों जाना है, क्योंकि अर्जेंट टास्क विल नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। अर्जेंट टास्क हो जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, शादी हो जाएगी, खाना वाना खा लेंगे, सब कुछ आप कर लेंगे। व्हाट इफ यू हैव योर वेडिंग ऑन एग्जाम डेट, तो बहुत आसान सी बात है यार, वेडिंग तो बार बार होती रहेगी, एग्जाम कहाँ बार बार आता है, एग्जाम दे लो यार, वेडिंग बाद में कर लेना, कोई मसला थोड़ी, हम हिंदू थोड़ी है कि हमारे पास शुभ मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है, हम बाद में भी कर सकते हैं शादी, क्या मसला है, या पहले कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, शादी करके मस्त एग्जाम देने जाओ, बीवी की दुआ भी लगेगी यार, सास ससुर की दुआ भी लगेगी। खैर, तो हमको कहाँ से अपने डेलीगेट वाले टास्क को में से नेविगेट करके स्केड्यूल वाले टास्क में पहुंचना है, और वहां पे अपने आप को ज्यादा वक्त देना है, जिसमें आपकी एक्सरसाइजिंग हो सकती है। लंबे क्लासमेट्स, मतलब लंबे क्लासमेट का, सम ऑफ माय क्लासमेट्स हैड एग्जाम्स द नेक्स्ट ईयर देयर ओन वेडिंग, वेरी गुड, वलीमे में एग्जाम लिखना है, इससे अच्छी क्या बात है यार, बड़ी अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। तो स्केड्यूलिंग में अपने आपको टाइम देना है। उसके बाद ये चौथा कॉन्ट्रेंट है, इसके बारे में मैं आप सबको समझदार समझता हूँ कि ये तो सारे डस्टबिन में फेंकने वाले काम है, ठीक है, जो ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। मिसाल के तौर पे आप रील्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप टीवी देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इन कामों से अपने आपको पूरी तरह से बचा के रखना है। ये आइजनहावर मैट्रिक्स है, इसको अच्छी तरह समझ लेना है, और इससे अपनी प्रायोरिटी और टाइम दोनों मैनेज हो जाएंगे आपके, कि आपको जब भी कोई काम आए सामने, तो अपने पहले तो आप पेपर पे बना के रख सकते हैं और उसमें इमेजिन कर सकते हैं, डेली का बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैं दिमाग में बना लेता हूँ कि भाई हाँ, ये काम मेरे किस कोऑर्डिनेट में फिट होगा, तो उस हिसाब से उसको उतना ही टाइम दिया जाएगा। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट है वो तो हो ही जाएगा, अगर अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको थोड़ा टाइम देके मूव करूंगा फॉरन ऐसे टास्क में जो इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करना है और इसको मेहनत करना है, इस पे क्या नाम है, आगे इंशाल्लाह और भी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, इसमें एक एक्सरसाइज करानी थी मुझे। आर यू इन फॉर एक्सरसाइज, बिकॉज हम ओवर टाइम जा रहे हैं, तो मैं एक्सरसाइज कराऊं कि ना कराऊं? इफ यू आर टायर्ड और इफ यू आर फीलिंग लाइक इट्स वी आर गोइंग ओवर टाइम, देन वी कैन डू इट लेटर, अदरवाइज मैं छोटी सी एक्सरसाइज कराता हूँ। यस प्लीज, सब लोग लिखो यस, डू इट डू इट डू इट। अच्छा ठीक है, तो हम चलते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं। आपके पास पेन पेपर रेडी है? वैसे तो ये फ्री मास्टर क्लास है, वरना आप सबका कैमरा खुलवा के मैंने चेक करवा लेना था अभी, पेन पेपर है कि नहीं है। ओवर टाइम नहीं है भाई, इट इज वर्थ इट, अच्छा इट इज वर्थ इट, कोई बात नहीं, देखते हैं कितना वर्थ है। तो आप सबके पास पेन पेपर है? टाइप यस और रेज योर हैंड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, पेन पेपर है। तो आप अपने किसी कमरे में बैठे होंगे, कोई मैदान में तो नहीं बैठा? इज एनीबॉडी सिटिंग आउटसाइड रूम? नो, चलो ठीक है, वैसे तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है, आप सब लोग समझदार लोग हैं। तो खैर, जहां भी बैठो अच्छी बात है, जो जितनी खुली जगह में बैठा उसके लिए उतनी मुश्किल होने वाली है भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जस्ट कीप लिसनिंग टू मी एंड पेन पेपर साइड में रख लीजिए, एंड नाउ यू हैव टू फॉर 10 सेकेंड्स, मैं आपको टाइम दूंगा, आपको पूरे अपने रूम में एक अपनी जगह पर बैठे बैठे पूरी गर्दन घुमा के उल्लू की तरह, यू हैव टू ऑब्जर्व योर इंटायर रूम, ओके, एंड यू हैव टू लुक फॉर थिंग्स इन रेड कलर। लाल कलर की चीजें देखनी है, व्हेन आई विल से स्टार्ट यू हैव टू डू इट, ओके, अभी मत करने लग जाना। सब लोग रेडी हैं? जस्ट शो मी योर हैंड्स और यस और नो समथिंग, समझ में आ गया क्या करना है? ओके, लाल चीजें देखनी है, ठीक है, लाल देखना है बस, ठीक, ओके वेरी गुड। तो आई से 3 2 1 एंड आपको सब कुछ छोड़ के अपने उसमें घूमना है, एंड यू हैव टू वॉच फॉर द रेड थिंग्स वेर एवर यू आर इन योर सराउंडिंग्स, ओके। ओके, 3 2 1 स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। आ गए वापस सारे लोग?
आगे वापस, नाउ यू हैव 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स ले लो एंड राइट ऑल द रेड थिंग्स व्हिच यू सॉ। कितनी चीजें लिख पा रहे हैं आप बताइए, या लिखो नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट चैट में लिख दो कितनी रेड चीजें देखी। 3, ओके वाह क्या बात है। 4, मेमोरी पे तो नहीं लिख रहे ना, देखा ना। 4, 5, 7, अरे वाह। 6, 7 वाला कौन था, कौन था भाई 7 वाला? ये कौन जीनियस है हमारे दरमियान? वेरी गुड वेरी गुड डॉक्टर जी। शाहजेब 6, अच्छा ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा, मतलब सबने जो देखा गया बोला। अब एक छोटा सा और काम करना है, नाउ यू हैव टू राइट थिंग्स विच वर इन ग्रीन कलर विदाउट दोबारा गर्दन घुमाए, और मेमोरी यूज किए बिना आपने कितनी ग्रीन चीजें देखी थी वो लिखो। अब पेपर पे लिख के फिर बाद में इधर लिख दो, कोई मसला नहीं। नन, दो, दो, एक, दो। देखी थी या मेमोरी से लिख रहे हो? क्योंकि अपना प्लान है भाई, प्लांट, नोटबुक, ग्रीन पेन। कुछ होता ना भाई, मुझे पता है मेरे रूम में इतनी तो ग्रीन चीजें हैं ही, रोज देखता हूँ मैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने क्या है, हाँ मेमोरी से लिख रहे हैं, आपने देखा नहीं। इसीलिए जब हम ऑफलाइन करते हैं तब मजा आता है ना, क्योंकि आप नई जगह आते हो तो वहां पे तो अक्सर लोगों का पत्ता गोल हो जाता है फिर। किसी को एक याद रहती है, किसी को एक भी नहीं याद रहती है। तो ये क्या हुआ अभी, ये क्या हुआ अभी, इस एक्सरसाइज से आपको क्या पता चला? क्या पता चला आपको एक्सरसाइज है? अच्छा अब दोबारा गर्दन घुमा के देख लो एक बार, ग्रीन है कि नहीं है। कि लोग कह रहे हैं ना कि एक को नहीं याद है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, देख लो अभी दिख जाएगा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो ग्रीन दिखेगा अभी। दिखा कुछ ग्रीन अब कमरे में? दिखा? अरे मेरा कुर्ता है, पहले नहीं पता था क्या? ज्यादा ही ग्रीन दिख रहा है, अब तो ग्रीन ही ग्रीन दिख रहा है, क्या बात है। हरियाली चारों तरफ। फोकस ऑन योर गर्ल, फाइंड रेड कलर आइटम्स। हाँ, जी, 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 जी। तो ये है माइंडफुलनेस की आपकी कीमत, कि जब आप फोकस कर लेते हो किसी चीज के ऊपर तो आपको वो दिखना ही दिखना है। उसके जो भी नॉन एग्जिस्टेंट छोटी सी छोटी चीजें भी, और जो एकदम माइन्यूट चीजें होंगी वो भी उस कलर की दिख जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक टारगेट था। तो ग्रीन चाहे कितना बड़ा भरा पड़ा हो, चाहे ब्राउन कितना भरा पड़ा हो, कितना कुछ भी हो, यू आर गोइंग टू मिस इट। तो दिस इज द पावर ऑफ फोकस। तो आपको ये माइंडफुलनेस से पता चलता है कि हम कितना अटेंटिव रहते हैं और कितना चीजों को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो यही लाइफ में भी होता है, व्हेन यू फोकस इन प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन योर लाइफ, वही दिखना शुरू होते हैं। व्हेन यू फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, तो गुड थिंग्स दिखना शुरू होती हैं। तो इसीलिए जब जर्नलिंग आप करते हैं, जैसे जैसे माशाल्लाह रेनेसेंस, यार कैसे प्रोनाउंस करते हैं यार, ये भी कोई बता। तो जो भी है जो कह रहे थे हम रेगुलर जर्नलिंग करते हैं, बुशरा बाजी ने भी कहा था वो भी रेगुलर, जो लोग भी जर्नलिंग रेगुलर करते हैं उनको मैं ये प्रो टिप जरूर कहूंगा कि ऑलवेज इंक्लूड सम 1 or 2 गुड थिंग्स इन योर एवरीडे लाइफ, अपनी जर्नलिंग में इंक्लूड करो। तो धीरे धीरे गुड थिंग्स बढ़ने लगेंगी लाइफ में। ये एक प्रो टिप दे दिया मैंने आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन एक बहुत बड़ा बोनस है। अच्छा हम अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे सारे मुसलमान, इत्तेफाक की ऐसी बात है, ठीक है माशाल्लाह। तो जब हम सारे मुसलमान हैं तो हमें अल्लाह ताला ने मेडिटेशन का एक बहुत बड़ा रास्ता वैसे ही दिया हुआ है। सेल्फ हिप्नोसिस इज रिलेटेड टू दिस। शाहजेब साहब, सेल्फ हिप्नोसिस बहुत बड़ा टर्म है और वो एक पूरी साइंस है। और यस इट इज समवॉट, हिप्नोसिस इज ऑलवेज रिलेटेड टू यू, एवरीवन कैन डू इट, एवरीवन कैन फील इट, एक्सपीरियंस इट। बट समथिंग रिलेटेड है बिल्कुल, लेकिन बट यू विल, आई विल नॉट रिलेट हियर विद इट, ओके। इट्स समथिंग डिफरेंट फॉर नाउ, आप ऐसा ही समझ लीजिए। तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुसलमान हैं, जो मैं कह रहा था। हमें अल्लाह ताला ने एक बहुत क्या नाम है बोनस दिया हुआ है अपने आप को, माइंडफुलनेस, और हमारी माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। प्रो टिप्स फॉर मुस्लिम्स क्या है? प्रेयर है, आपकी नमाज है। अच्छा हमारे मुसलमान भाइयों में एक बहुत बड़ा, स्पेशली ब्रदर्स, ब्रदर्स टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं और इमाम साहब के अल्लाह को पढ़ने के बाद आप किसी वखरे जगह पहुंच जाते हैं, और किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे दुनिया के सारे मसले आपको याद आ जाते हैं, हर चीज याद आ जाती है, और जस्ट इमाम और ग्रुप के साथ, जमात के साथ आप बस अल्लाह अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द सब चलता रहता है। एंड जैसे ही सलाम फिरता है आप दुनिया में वापस आ जाते हैं। कितने लोगों ने ये फील किया है? बॉयज कम है वैसे यहाँ पे, लेकिन जितने भी हैं क्या वो बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा फील किया है कभी, कि हमने नमाज शुरू की और हम गायब हो गए दुनिया से, पता नहीं कहाँ पहुंच गए, और जब तक सलाम नहीं फिरा तब तक वापस ही नहीं आए? हम्म। अच्छा कारी साहब की किरत अच्छी रही। हाँ समटाइम्स नहीं, बिल्कुल अकेले में भी होता है भाई। हमने अपनी नमाजों को ऑटो पायलट पे डाला हुआ है। नहीं लड़कों को ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो जमात से पढ़े ना, उन्हें तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं कितनी रकात हुई, वो भी इमाम का काम है। हमारे यहाँ इमाम साहब ने गलती कर दी, एक बार 5 रकात पढ़ा दी पूरे नमाजी में, 50 लोग नमाज पढ़ने वाले, किसी ने बताया ही नहीं। नमाज बाद इमाम साहब पूछ रहे हैं कि क्या नाम है, बाय द वे माजरत के साथ अर्ज कर दूं मैं भी उस जमात में था।
तो मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि भाई 5 रकात पढ़ी कि 6 रकात। नमाज बाद वो पूछ रहे तो हम लोग कह रहे हैं कि शायद पढ़ी शायद नहीं पढ़ी, तो हम लोगों ने दोबारा नमाज पढ़ी फिर। तो खैर, लेकिन ये हमारा हाल है कि हम माइंडफुलनेस और फोकस उस चीज में भी नहीं कर रहे जहां करनी थी। जैसे आप सबने सीखा होगा नमाज पढ़ते वक्त कि हमें नमाज में फोकस सारा कहाँ देखना है, आंखों को पूरे एक जहां पर डाइवर्ट करना है। दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग एनीवन कैन टीच यू। जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला कोर्स किया था फोकस का, वो भी मैं स्कूल डेज में था, और वो पूरा पैसे दे के अच्छे खासी क्लास की थी हम लोगों ने। 3 दिन का सेशन था पूरा वो, ठीक है। उसमें फोकस के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। तो उसमें उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक यही सिखाई थी कि आप अपनी आंखों को एक पॉइंट पे गड़ा के रखना। मैं एंड में आपको बताऊंगा थोड़ा सा वो कैसे करते हैं, लास्ट स्लाइड वही होगी उसके बारे में। तो जब आप अपनी आंखों को एक पॉइंट पे फोकस करते हो, जैसे नमाज में हम सजदे पे फोकस करते हैं, so then you create a state of attentiveness which is very effective in learning new things। आपकी कोई भी ब्रेन को एकदम शार्प कर देती है वो चीज जब आप नमाज में। इसीलिए जब ईमान वालों का जिंदगी का फोकस, जो लोग प्रॉपर नमाज पढ़ते हैं उनकी जिंदगी का फोकस बहुत अच्छा होता है जिंदगी, अगर वो खुशू खुजू के साथ जैसा नमाज पढ़ने का हक है वैसी नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो ये उस चीज का ख्याल रखना है कि आप अगली बार जब भी नमाज पढ़ें तो आपका आंखों का मूवमेंट देखिए, आप कि आंखें किधर जा रही हैं। और नाक बंद करके तो बिल्कुल नहीं पढ़नी। और मैं आपको बता दूंगा अगर थोड़ा सा फिक्री तौर पर, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड भी है, आप लोग वाकिफ ही हैं कि आंख बंद करके नमाज पढ़ने से बाद लोग मकरू तक लेके जाते हैं कि मकरू हो जाती है नमाज। तो आंख खोल के पढ़िए और जहां सजदे का पॉइंट है वहीं देख के पढ़नी है नमाज। आप इसको थोड़ा सा मेहनत करिए, डेली अपनी लाइफ में कोशिश कीजिए। एक दिन में तो नहीं होगा 100%, लेकिन जब ये रेगुलर होने लगेगा यू विल फाइंड योर फोकस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन नमाज। और ये चीज फिर धीरे धीरे नमाज के बाद में रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो ये इसको स्टडी स्टेट बोलते हैं। जब भी आप कोई अच्छा फोकस का काम करने जाएं, चाहे पेंटिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे आपका अपना प्रोफेशनल काम हो, पीपीटी बनानी हो, डॉक्टर्स को देखना है, जो भी है, तो आवर आइज डोंट वैंडर, बहुत अच्छी बात है। माइंड माइंड को भी फिर वहीं लेके आइए ना, उस पॉइंट पे, सजदे वाली पॉइंट पे माइंड को लेके आइए। जो आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, उन चीजों पे। तो द थिंग इज यू हैव टू एंकर इट। आपका अगर आइज वैंडर नहीं कर रही है तो ये भी क्या नाम है, बहुत अच्छी चीज है। बहुत लोगों की आइज भी वैंडर कर रही होती हैं पूरी नमाज में, वो सामने देखते होते हैं, कुछ भी है उनको, मतलब वो आंख एक जगह पे नहीं है, एक पॉइंट पे नहीं है, वो मुसल्ले पे ही देख रहे होंगे लेकिन पूरा मुसल्ला ऑब्जर्व कर लेंगे, सारे पैटर्न्स बना लेंगे अजीब अजीब, कि जाए नमाज पे क्या क्या पैटर्न्स बने हुए सब नजर आ जाते हैं, और वो मेमोराइज हो जाते हैं और नमाज बाद भूल भी जाते हैं। तो खैर उसको हम जब अपने आप की फोकस लेके आएंगे उस चीज में, तो आपका माइंड भी इंशाल्लाह धीरे धीरे उस पर ट्रेन हो जाएगा। तो ये करने की जरूरत बहुत ज्यादा है हमें, और एज ए मुस्लिम जी आपके लिए बहुत अच्छा टूल है। और नमाज के अलावा भी कभी भी पढ़ने बैठे हैं, कभी भी आप कोई भी हाई फोकस रिक्वायरमेंट वाला काम करने बैठे हैं, हाई अटेंशन स्पैन वाला, तो एक पॉइंट कोई बनाइए, उसके ऊपर 2 मिनट तक सिर्फ उसे देखना है। अब ये एक्सरसाइज भी बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये एक्सरसाइज मैं आपको उस पर नहीं करा सकता ऑनलाइन, ये आप मैं आपको सामने, मेरे को एक एक बंदे को देखना पड़ेगा कि कैसे करता है वो एक्सरसाइज, तभी सही होती है। खैर एनी टाइम एल्स इंशाल्लाह, लेकिन आप अपने सामने दीवार पे या कहीं भी एक पॉइंट बनाइए और उस पर फोकस कीजिए, सिर्फ उस पॉइंट को देखिए 1 मिनट तक, और इतनी देर तक देखना है। या लेट्स ट्राई इट, लेट्स ट्राई इट, लेट्स ट्राई इट। सब लोग रेडी हैं? सामने दीवार पे एक पॉइंट बना सकते हैं अभी? हाथ से बनाने की जरूरत नहीं, इमेजिनरी एक पॉइंट इमेजिन कर लीजिए अपने साथ में, ठीक है? ओके, I'll start, I'll say 3 2 1 and you have to focus, you have to just view that point। okay, 3 2 1, just उस पॉइंट को देखते रहिए, देखते रहिए, keep looking at that point, keep staring at that point without blinking your eyes, keep, no you should not blink, keep looking at that point, keep staring at that point। can you feel that point zooming in and zooming out? क्या आपको दिख रहा है आगे पीछे आते हुए? you can feel it, can feel it। कितनी देर हो गई? 10 सेकंड हुआ। ओके, देखते रहिए, इसको कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना है, जस्ट वन पॉइंट देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड टू गेट द विजन ऑफ साइड बाय साइड थिंग्स विद दैट पॉइंट नाउ? जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ पॉइंट दिख रहा था, अब साइड की चीजें दिख रही हैं, जस्ट कम आउट ऑफ इट। ओके, अब आप छोड़ सकते हैं। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि उन्होंने साइड की चीजें भी देखना शुरू कर दिया था, कि उस पॉइंट के क्या नाम है, आईज का पूरा आई बॉल्स का फोकस उसी पॉइंट पे है, लेकिन बैकग्राउंड विजन एक्टिवेट हो गया, बैकग्राउंड विजन से आपने साइड की चीजें दिखना शुरू हो गई। ठीक है, डॉक्टर जी ने एक्सपीरियंस किया, यस, रिलेटिवली सारी चीजें उससे रेफरेंस होते हुए दिखना शुरू हो गई हैं, बैकग्राउंड विजन, बिल्कुल। तो ये चीज एक्सपीरियंस होती है, कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं 10 20 सेकंड में, कुछ लोग नहीं। कहा ब्लर होने का मतलब ये है कि फोकस उस पॉइंट पे स्टिक हो गया कैमरे का, बाकी साइड की चीजें भी अब आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो रही हैं। तो वैसे ही अगर हम रियल रूम में होते या सामने होते तो ये किसी को 2 मिनट में होता, किसी को 1 मिनट में होता, लेकिन ये चीज जितना जल्दी अचीव हो रही है उतना जल्दी आप अटेंशन और फोकस में आ चुके हैं, ये उसकी निशानी होती है। सो दिस इज एन एक्सरसाइज विच इज वेरी गुड टू डू। अभी लेकिन आप सामने नहीं है तो मैं आप सबको कराता है कि करके अच्छे से, बट एनी टाइम इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि आप एक पॉइंट पे फोकस करने की आदत डालिए, उस वक्त तक आदत डालिए कि आपको अपने एकदम लेटरल साइड की चीजें भी
अपने विजन में दिखना शुरू हो जाए। यानी ऑलमोस्ट आपको 180 डिग्री विजन एक्टिवेट होना चाहिए कि दोनों साइड में, अगर एकदम साइड में भी कोई चीज है तो धीरे धीरे आंखों को दिखना शुरू हो जाना चाहिए। अनलेस यू आर हैविंग सम आई प्रॉब्लम, यू विल रीच इट मे बी आफ्टर 2 मिनट्स, मे बी आफ्टर 1 मिनट ऑफ फोकस आपको ये मिलेगा। सो दैट इज पैरालैक्स हो रहा था फॉर अ बिट। अब आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को किसी को रेफर कर सकते हैं इस तरह की चीजें। इट्स ऑन सिस्टम, तो मैं इतना नहीं बता पाऊंगा कि क्या आपको मसला हो रहा है। इफ आई कैन व्यू यू हाउ यू आर डूइंग इट, तो मैं आपको करेक्ट कर सकता हूँ उस पर। तो खैर ये एक एक्सरसाइज होती है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। सो माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन की ये एक बहुत कीमती चीज है कि आप इससे अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे अच्छी चीज क्या है? एम्ब्रेसिंग बोर्डम। अपने आप को बोर जो होते ना, हम काम करते करते थक जाते, बोर हो जाते, उस बोर्डम को बुरा नहीं जानना, एक्सेप्ट करना, उसको लगाना, गले से लगाना, दिल से लगाना। हाँ भाई कोई बात नहीं यार, 30 मिनट से पढ़ रहे हैं एक ही चैप्टर, कार्डियोलॉजी पूरी पढ़ डाली, अब बोर हो रहा है तो भाई बोर तो होंगे यार, तो नेचुरल है। तो 5 मिनट क्या करने का? मोबाइल नहीं उठा लेने का, 5 मिनट बोर होने का, सिर्फ बोर होने का। एक हैबिट डालिए ऑफ डूइंग नथिंग फॉर 5 मिनट्स। अब आई कैन बिलीव इट कि इंसानियत को इस लेवल पे आ गई है कि वी हैव टू से दैट कि डू नथिंग फॉर 5 मिनट्स। पहले ये था कि भाई हरदम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ मतलब कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन अपने फोकस के हाई परफॉर्मेंस काम करते वक्त बीच में देयर शुड ऑलवेज बी सम टाइम यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ नहीं कर रहे हो, खामोश बैठे हैं बस, या कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फोन ऑन नहीं छेड़ना बस। कुछ भी कर लें, एप्पल खा लें, वो जो एक पोमोडोरो टेक्निक होती है ना, 30 मिनट पढ़ना फिर 5 मिनट क्या नाम है, हाँ नहीं, वंस पिक्स्ड अप फोन 5 मिनट्स विल बी 30, वो मसला नहीं है। 5 से 15 30 हो रहा, वो 15 15 25 हो जाए, वो दैट्स नॉट एन इशू। द इशू इज फोन उठाते ही सारा अटेंशन फोकस सब चीज लेने चला गया आपका। इट्स गॉन टू बाय सम ऑलिव ऑयल्स एंड ऑलिव का वो जो जैतून का तेल होता है वो ले लेगा, और फिर उसके बाद आपका दोबारा फोकस लाने में वो पूरा यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर वन या जीरो या स्क्वायर नेगेटिव भी बोल सकते हैं आप, वहां से भी स्टार्ट हो जाएगा आपका मामला। तो फोन इसलिए नहीं उठाना, 5 मिनट का ब्रेक लेना, लेकिन विदाउट टेकिंग फोन। कुछ भी करें उसके भी क्या नाम है, मसला नहीं है। इट्स ओके टू बी टायर्ड एंड इट्स ओके टू बी बोर्ड। जब आप हैवी काम कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी वर्क कर रहे हैं, फोकस की चीजें कर रहे हैं, तो इट्स नॉर्मली वेरी वेरी ओके टू बी बोर्ड एंड टायर्ड। कितने लोगों को बोर्डम और टायर्ड से लाइक दे फील इट्स अ ट्रबल फॉर देम टू गेट बोर्ड और टायर्ड? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट्स अ ट्रबल टू गेट बोर्ड और टायर्ड? मी, बस एक बंदा, मैं। क्या बात है, बकरी की आवाज है तो। मी। और 3 लोगों को लगता है कि बोर और टायर्ड होना बुरी बात है, और बस 3 ही लोगों को लगता है। आई कांट स्टे आइडल, ओ इट्स ओके, आई कांट स्टे एज वेल, एडीएचडी है, नो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हाई इंटेंसिटी काम कर रहे हैं तो स्टे आइडल रहने की भी आदत डालो। अगर हाई इंटेंसिटी काम नहीं कर रहे तो इट्स गुड इफ यू नॉट स्टेइंग आइडल, कुछ करते रहो, कोई मसला नहीं। कांट कांट, ठीक है, सेम। ठीक है, अक्सर लोगों को ये मसला आता है, तो उसको एम्ब्रेस करना। जब आप हाई फोकस का काम कर रहे हो तो 30 मिनट से 40 मिनट बहुत होता है। कभी कभी 20 मिनट बाद आदमी थक जाता है और बोर होने लगता है या टायर्ड हो, तो उस वक्त 5 मिनट्स का ब्रेक देना बहुत जरूरी चीज है। दोज 5 मिनट्स ब्रेक डूइंग नथिंग विल हेल्प टू रिगेन फोकस, ऑफ कोर्स इट विल। वो 5 मिनट आपको ब्रेक लेके आप, मैं उसमें अच्छी चीजें भी बता सकता हूँ, आई गेट बोर्ड बाई बोर्डम। भाई तब तो आपको बहुत 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 मुबारक हो, बधाई हो कि आपको बोर्डम से बोरियत हो गई, तो कुछ करते क्यों नहीं, कुछ करो। वो दैट इन मोदी जी वॉइस, कुछ करते क्यों नहीं, करो करो। तो एनीवेज, तो आप एक्टिविटीज इनकलकेट कीजिए, अपने लाइफ गोल्स को सेट कीजिए, यू नॉट गेट बाय बोर्ड बाय बोर्डम। इफ इट्स गेटिंग इट्स गुड थिंग, इसका मतलब आपके पास टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। सो पुट इट टू यूजफुल समथिंग, डू समथिंग एनीथिंग व्हिच यू वांट टू डू। ठीक है। तो अपने आप को खाली टाइम देना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पेशली जब आप हाई इंटेंसिटी वर्क करते हो ना, तो उसके बीच में आदमी जब 20 मिनट 25 मिनट बाद थक जाए, 40 मिनट बाद थक जाए, तो कोई और काम स्टार्ट करेगा, तो दैट इज अ ट्रबल। दैट विल जनरेट ट्रबल। व्हाई दैट विल जनरेट ट्रबल? क्योंकि कोई फोकस शिफ्ट हो गया। हाँ वही, आप आइडल रहोगे ना तो फोकस शिफ्ट नहीं होगा, बस माइंड रेस्ट ले लेगा 5 मिनट में। और जब दोबारा आप रिज्यूम करोगे टास्क, टास्क अच्छा चलेगा। तो ये करने का काम होता है कि आप कोई और काम ना उठा लो बीच में। हाँ, आप कोई ऐसा काम उठा लो जो आपका मेंटल और फोकस को ना ले ले। आप फिजिकल फोकस, ठीक है, आपने कुछ जंप कर लिया, पानी पी लिया, कुछ कुलाटियां मार ली, कुछ कर लिया, इट्स ऑल दैट्स ऑल गुड इफ यू कैन डू इट। ठीक है। सो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम यार, मैं ज्यादा टाइम, मुझे 1 घंटे का रखना चाहिए था। ओके, तो उसके बाद ब्रीथिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग कितने लोग जानते हैं यहाँ पे? डीप ब्रीथिंग इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स yes or no if you know deep breathing. yes, very good, very good. yes, yes, not me. और कौन? नो, 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 नो। अच्छा, डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग। हाँ, जिम के वक्त नहीं, नहीं वो, हाँ ठीक है, जिम के वक्त भी करते हैं मतलब। डीप ब्रीथिंग का एक फंडा है, चलिए हम करते हैं आपके साथ। आई विल काउंट टिल 1 to 5 एंड यू विल हैव टू इनहेल विथ योर माउथ।
नो 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 नो, विथ नोज। इनहेल इज ऑलवेज नोज। आप अपने नाक से सांस अंदर खींचेंगे और पेट फुलाएंगे पूरा। ठीक है, सामने वो रहते तो आपको अच्छे से दिखता, मैं करके बताता। लेकिन आई विल काउंट फ्रॉम 1 to 5 एंड यू हैव टू डू नथिंग। जस्ट आपको रिलैक्स होकर बैठना है एंड यू हैव टू इनहेल विथ योर नोज एंड देन आई विल काउंट अगेन फ्रॉम 5 to 1 एंड यू हैव टू एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। और एकदम होठ को गोल करके, जिस तरह सीटी बजाने की ऐसे हल्की सी आवाज आती है ना, यू ऑल कैन स्विच ऑन योर माइक्स इफ यू थिंक कि आप वापस सांस बाहर लोगे तो सीटी की आवाज आएगी। लेट्स हियर सम सीटीज, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं 1 to 5 गिनूंगा, सांस खींचनी है नाक से, फिर 5 to 1 गिनूंगा तो मुंह से बाहर निकालनी है स्लोली स्लोली। 1 सेकंड में सारी सांस नहीं निकालनी, धीरे 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 कि 5 सेकंड तक बाहर आए और खत्म हो जाए सांस, पेट एकदम लगे एम्प्टी है, तब भी बाहर पुश करते जाना है 5 सेकंड तक। ओके, विल डू दिस 3 times। ओके, तो इससे आपको एक रिलैक्सेशन का एक अलग टेक्निक समझ में आएगी कि ये बहुत इमीडिएट क्या नाम है टेक्निक है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू इनहेल फ्रॉम नोज। बैल दिखते इफ यू डू इट फ्रॉम माउथ। ओ हो, नहीं नहीं, बैल मत दिखना, कोई मसला नहीं, इंसान ही दिखे। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। ओके, आई जस्ट स्टार्ट। ओके, ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5। अब नाउ वी आर गोइंग टू एक्सहेल। 5 4 3 2 1। फिर से मैं 1 to 5 बोलूंगा तो आप इनहेल करेंगे नोज से, एक्सहेल करेंगे माउथ से। 1 2 3 4 5। 5 4 3 2 1। Again, 1 2 3 4 5। 5 4 3 2 1। गुड, फंटास्टिक। 3 बार किया, कुछ फील हुआ? कुछ फील हुआ मित्रों? मित्रों कुछ फील हुआ? पता नहीं, चले बहुत कुछ हो गया अंदर लेकिन आपको पता नहीं चला। ये मैंने कहाँ चला गया, ये क्या कर दिया मैंने? हम कहाँ पे थे? स्ट्रेस मैनेजमेंट पे थे ना। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा माइंड रिसेट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, होता है, बहुत कुछ होता है। अभी और कराएंगे तो 3 बार कराए। एक्चुअली में ये सब बहुत सामने से कराने, पूरा आपकी आवाज सुननी चाहिए कि मैं सुनूं आप कैसा ब्रीथ कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग इज सच अ फैंटास्टिक एक्सरसाइज। इट कैन चेंज योर लाइफ विद दिस वन टेक्निक। आज के पूरे प्रोग्राम में एक टेक्निक अगर आप लेके चले जाएं, जो लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी सबसे परेशान है, सिर्फ डीप ब्रीथिंग अगर आप अच्छे से सीख जाएं और डेली दिन में 5 मिनट सिर्फ डीप ब्रीथिंग कर लें बैठ के। और ये बहुत अच्छी चीज होती है, अगर आप बोर्डम हो रहे हैं और बीच में काम के बीच में थक गए ना, सिर्फ 5 मिनट्स तक डीप ब्रीथिंग कर लो, ऐसा बॉडी रीसेट होगी, ऐसा दिमाग रीसेट होगा कि जिंदगी के आनंद आ जाएंगे। तो इट्स अ वेरी फैंटास्टिक एक्सरसाइज इफ एनीवन डज इट प्रॉपरली एंड इफ एनीवन स्टार्ट्स डूइंग इट एंड फॉलोज दिस थिंग। तो ब्रीथिंग, ब्रीथिंग इज फन। जस्ट एंड एम्ब्रेस ब्रीथिंग। ब्रीथिंग इज योर लाइफ लाइन टू लाइफ। आपकी जिंदगी चली सांस लेने की वजह से रही, तो उस सांस को ऐसा लीजिए कि आपको भी सांस लेने में मजा आ जाए। 5 सेकंड तक जबरदस्त नाक से खींचिए, नाक भी क्लियर, पेट भी क्लियर। और इससे इतने सारे बेनिफिट होंगे, पूरा पेट फुल जाना चाहिए। जब आप खींचे ना तो ऐसा लगे कि आपके लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं। लंग्स एक्सपैंड होंगे तो डायफ्राम नीचे जाएगा, डायफ्राम नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली पेट बाहर निकलता हुआ लगेगा। डॉक्टर्स हमारे दरमियान है तो आई होप अगर मैं कुछ गलत हवाई फायर कर रहा हूँ तो वो मुझे करेक्ट कर देंगे। जाहिर सी बात है, लंग्स में सांस भरेंगे तो डायफ्राम नीचे ही जाएगा, नीचे जाएगा तो पेट थोड़ा सा बाहर निकलेगा। तो जस्ट फील दैट थिंग। और सांस लीजिए, 5 सेकंड तक खींचिए दबा के अंदर, फिर धीरे 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 हल्लू 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 हाथ मुंह से एकदम छोड़ना है सांस। एंड यू हैव टू डू इट कंटिन्यूसली। आपकी एंग्जाइटी नीचे आएगी, आपका स्ट्रेस नीचे आएगा, ये होगा ही होगा। क्यों? और ये एग्जाम में भी कर सकते हैं। जिन लोगों को एग्जाम में स्ट्रेस होता है ना, कि स्ट्रेस की वजह से भूल जा रहे हैं, एग्जाम के बीच में 1 घंटे बाद ये 5 मिनट की टेक्निक कर लो, चाहे एग्जाम में बाकी हॉल में आप परेशान हो जाए आपको देख के, लेकिन फिर आपको सब याद आ जाएगा और रिजल्ट के बाद वो भी फिर देख के परेशान हो जाएंगे, ये क्या काम कर दिया। तो ये चीज है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए लाइफस्टाइल अपग्रेड करनी होती है, वो पूरा एक लंबा प्रोसेस है। लंबा भी नहीं, छोटा ही है, लेकिन अपनी जिंदगी को एक सही आप डायरेक्शन देंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज नॉट वन थिंग कि आप फिक्स कर दें, एक पुड़िया खाली दवाई खाली ठीक हो गया, ऐसे नहीं होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है आप अपनी लाइफ में सारे स्ट्रेस फैक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे, सारी चीजों को देखेंगे और उसके बाद उसको मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। तो ये करने की चीज है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आज मैंने जो भी आपको बताई होंगी, इनमें सबसे अच्छी कोई एक्सरसाइज है जो आप रेगुलरली अपनी जिंदगी में इनकलकेट कर सकते हैं तो ब्रीथिंग। और प्रॉपर ब्रीथिंग से आप यू नो देयर आर समटाइम्स हियर पीपल those who are trying to cure cancer with breathing only। ब्रीथिंग, वो 6 6 घंटा तक डीप ब्रीथिंग कर रहे होते हैं। पता है आपको, दुनिया में ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिर्फ ब्रीथिंग के बल पे पूरा इलाज करा रहे हैं।
दवाएं ववाएं अपनी जगह, लेकिन उनका मेन फोकस हीलिंग का ब्रीथिंग है, सो दे डू इट। देयर इज रीकी, इफ यू हैव हर्ड, रीकी थेरेपी है, मेंटल वेलनेस हो रहा है, दुनिया में बहुत कुछ चलता है, लेकिन ये इसमें एक ये भी चीज़ है। तो ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीथिंग पैटर्न से आप बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, ये भी याद रखिए। डीप ब्रीथिंग से जिन लोगों को साइनस, और जैसे मुझे खुद बहुत ज्यादा मसला हुआ करता था जुकाम का और साइनस का, मैं डीप ब्रीथिंग कर करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नाक एकदम अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू भी अच्छी आती है और जुकाम भी कम होता है। तो ये इसके बहुत सारे, क्या बात है, देखिए दैट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग ब्रिलियंट डॉक्टर्स। डीप ब्रीथिंग रिलीजेस एंडोर्फिन्स व्हिच रिड्यूसेस स्ट्रेस। खत्म, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात में मैं आपको ब्रीथिंग बता दिया, बताओ एक डॉक्टर तो मेरे अंदर भी है छोटा मोटा। एंड अदर स्ट्रेस हॉर्मोन्स, मैं आप मतलब चलो वैलिडेशन मिल गया, मैं गलत ज्ञान तो नहीं दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लोग आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स, थैंक्स फॉर वेरीफाइंग वेरीफाइंग माय क्लेम डॉक्टर साहब। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद सबसे आखिरी चीज क्या है? अहमद भाई आप भी डॉक्टर हैं? अरे हम, यार हम वो वाले डॉक्टर हैं जो डॉक्टरेट होता है ना, डॉक्टर इमेज, नकली वाले डॉक्टर हैं, वो वाले डॉक्टर। जस्ट किडिंग, आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। ठीक है, स्पेंडिंग टाइम आउट ऑफ कंक्रीट जंगल, नेचर इज योर, हाँ मशीन्स के डॉक्टर हैं, नेचर इज योर बेस्ट फ्रेंड। ये है आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इस वक्त का मिसिंग लिंक, हम सब लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया होगा। हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट एनालाइज फॉर 10 सेकेंड आपकी क्या नाम है जिंदगी का, 10 सेकेंड में पूरे दिन को एनालाइज कीजिए, और जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स कि आप ऑन एन एवरेज दिन में कितने मिनट्स या कितने आवर्स या कितने सेकेंड्स प्योरली नेचर के साथ स्पेंड करते हैं। प्योरली नेचर के साथ, नेचर का मतलब है ग्रीनरी होनी चाहिए, पौधे होने चाहिए, या फिर एनिमल्स होने चाहिए, या बाहर कुछ भी दुनिया होनी चाहिए, सनराइज देखते हुए, सनसेट देखते हुए, सूरज है, पहाड़ है, नदी है, कुछ भी। जस्ट एनालाइज इन योर माइंड फॉर 10 सेकेंड 15 सेकेंड में पूरे डे का, और एक एवरेज मुझे बताइए। कैन वी काउंट पेट कैट्स? हाँ, अगर सिर्फ उनको टाइम दे रहे हैं तो बिल्कुल कर लीजिए ना। 5 मिनट्स, वेरी गुड। 5 मिनट्स मिन्नू होनी चाहिए। मिन्नू क्या होता है? पता नहीं भैया, अब आपका कोई मिन्नू विन्नू है तो चीनू। मैं तो एक ही मेनू को जानता हूँ जो रेस्टोरेंट में हमें मिलता है, 20 मिनट में भी। वाओ वाओ फैंटास्टिक। 10 मिनट्स हार्डली, वाओ क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या बात है यार, डॉक्टर जी कहाँ रहते हो और हमें भी बुला लो। और जू में तो नहीं रहते, जंगल में कहीं? मिन्नू इज किटन इन हैदराबादी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आई लिव इन एन आइलैंड, ठीक है ठीक है। कैट्स डू हेल्प ब्रिंग डाउन स्ट्रेस लेवल्स, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, नेचर इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो कैट्स भी नेचर है, जंगली है यहाँ, क्या बात है। चलो ठीक है, आदिवासी बन जाएंगे वहाँ के, क्या हम भी तो जंगली है, इंसान जंगली जानवर है और क्या। और कोई क्या नहीं लोग थे ग्रुप में? सिर्फ एक, मैंने एक देखा 2 मिनट, एक 5 मिनट, एक 7 मिनट, कोई 20 मिनट तक वाला है। और कौन है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने वाला? अच्छा, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब नहीं है कि आप अच्छे बागबान में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, हाँ उसको मत काउंट कीजिएगा फिर टाइम, फिर वो आप मोबाइल के साथ हैं, नेचर तो आपके बैकग्राउंड में चला गया। सो इतने रिस्पॉन्सेज से भी हमें समझ में आ रहा है कि हम नेचर के साथ कितना दूर हो चुके हैं, जबकि हम खुद एक नेचुरल जीवित हैं। मैं भी रिमोट एरियाज में रहता, सांप बिच्छू कुत्ते बिल्ली सब है माशाल्लाह, फायर फ्लाइज भी है, और है जुगनू है नाम मेरा, रातों को खूब चमकता, उड़ उड़ के खूब चमकता, क्या बात है। आई लव जुगनूज, बहुत दिन हो गए यार जुगनू नहीं देखा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक आध पाल लेंगे, मौका मिला तो अपने कंक्रीट जंगल से बाहर निकलिए। डे टू डे लाइफ में आपका, मैं ये मानता हूँ कि एटलीस्ट आपका दिन का एटलीस्ट 1 आवर कहीं ना कहीं से नेचर के लिए निकालिए। क्यों? क्योंकि नेचर आपके स्ट्रेस को भी रिलीज करेगा, आपके फोकस को भी इम्प्रूव करेगा। दैट इज द बेस्ट थिंग। आप गौर कीजिए, जब इंसान जंगल में रहता तो उनका फोकस कितना ज्यादा था। ऑब्वियसली दे हैड लेस डिस्ट्रैक्शंस। उस जमाने के लोगों का फोकस हमारे से तो ज्यादा ही था। वो एक ही काम 100 साल तक भी जीते थे तो करते चले जाते थे, हम 2 दिन नहीं कर पा रहे। तो उसकी देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। तो ठीक है, तो नेचर ऑलवेज हील्स यू, नेचर ऑलवेज प्रोवाइड्स यू द बेस्ट एंड रिलैक्सेस योर माइंड। क्यों? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं नेचुरल एंटिटी हैं। जितना आर्टिफिशियल जंगल और जितना आर्टिफिशियल दुनिया के साथ आप रहेंगे, उतना आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट अरोमा कम होता चला जाएगा। तो अपने दिन में पार्क का निकालिए। द बेस्ट आई वुड सजेस्ट इज सनराइज देखने की भी सुबह का टाइम निकालना चाहिए हर किसी को। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, तो सनराइज एक देखिए 10 मिनट 20 मिनट तक, और वो टाइम पे बहुत अच्छी चीज़ है, हम सब मुसलमान हैं माशाल्लाह, तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ टेक्निक कि फजर के बाद सनराइज देखने जाइए और अपने अजकार का मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो मोबाइल इज़ नॉट हेल्दी, तो पेपर पे प्रिंट कर लीजिए, आपको कहीं भी पीडीएफ मिल जाएगी, और सुबह के सारे अजकार 20-22 अजकार हैं, 1 से 2 पेज में आ जाएंगे। वो बना लीजिए, देख के पढ़ते रहिए, सनराइज देखते रहिए, उसके बाद हाँ जस्ट कम आउट ऑफ इट। और डेली करते रहेंगे तो 20-25 दिन बाद आपको वो सारे अज़कार याद हो जाएंगे, जिसमें आयतुल कुर्सी से लेकर सारे जो 22 सुन्नत अज़कार हैं सुबह के। आप जिन और जिन्नात से भी महफूज हो जाएंगे, भूतों से भी महफूज हो जाएंगे, बलाओं से भी महफूज हो जाएंगे, प्लस नेचर के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगे, डेली जिक्र भी सुबह हो जाएगा। इतने बेनिफिट है क्या बताएं माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें कैसा दीन दिया है कि हर चीज़ से हम
अपने आप करीब होते चले जाएंगे। तो ये काम अगर आप लोगों से, अगर क्या करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सो इफ यू कैन डू इट, इट विल हेल्प इंशाल्लाह। सो अपने आप को नेचर से करीब लाइए। प्लांट्स एंड एनिमल्स, घर में जिनके प्लांट्स हैं माशाल्लाह, डॉक्टर जी के पास तो पूरा जंगल ही जंगल है। तो क्या नाम है, उनसे कुछ उधार ले लें, कोई जाके ले ले, कोई भाई गमले शमले ले आए, कुछ भी ले आए, कोई मसला नहीं है। और जानवर वगैरह हैं तो भाई, लेकिन बिल्ली से मेरा पर्सनल जाती दुश्मनी है, पंजा बहुत मारती है। सो हाँ, और कुत्ते कुत्ते मुझे पसंद नहीं है। इसके अलावा और कोई जानवर है, बकरा बकरी, जैसे आई एम वेरी, हमारे घर में बहुत सारे बकरे बकरियाँ हुआ करते थे। सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गोट्स। तो उस तरह का कुछ है, जस्ट ट्राई टू गेट इन टच विद एनिमल्स एंड ऑल। ये जो पेट एनिमल्स होते हैं, इनसे भी आप अगर हो सकते हैं, हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, जस्ट गेट इन टच विद प्लांट्स। कहीं भी है, कभी भी आप पार्क वगैरह में जाइए, कोशिश कीजिए नंगे पैर चलें। फीडिंग बर्ड्स, वाओ फैंटास्टिक थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप क्या नाम है, चिड़ियों को डेली ऑब्जर्व करें और उनकी चहचहाट सुने, चू 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 चू, दैट्स वेरी कामिंग एंड रिलैक्सिंग टू माइंड। हम फोकस के कई बार थेरेपीज कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो हम बैकग्राउंड में चिड़ियों की नॉइज डाल देते हैं, उससे भी बहुत फायदा होता है। तो ये भी चीजें हैं, तो यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स की प्लांट्स एंड एनिमल से किस तरह अपनी जिंदगी में कनेक्ट बनाएंगे। इट हेल्प्स इन रिलीविंग योर स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग योर फोकस। और एनिमल ऑब्जर्वेशन से फोकस बहुत बढ़ता है, क्यों? क्योंकि एनिमल से आपका कनेक्ट बढ़ता है, तो यू क्या नाम है, उसकी छोटी छोटी, यू ऑब्जर्व देम कि वो घास चल रही है, अच्छा उसने अभी ये वाला पत्ता ऐसे चबाया, अभी जुगाली कर रही है, अपनी आंखों को गड़ाया हुआ है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, एक पैर मार रही है नहीं मार रही, खाया नहीं खाया। इस तरह की चीजों से क्या नाम है, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ते हैं। आप फूल सूंघते हैं, खुशबू देखते हैं, प्लांट्स में भी स्पेंड करते हैं, यू लर्न फ्रॉम इट, सो यू डू इट। और एक चीज बहुत अच्छा फैंटास्टिक है जो आजकल एकदम लॉस्ट हो गई है, विच इज वन ऑफ द यूज टू बी माई फेवरेट थिंग व्हेन आई यूज, मतलब अपने जब भी गांव में होता हूँ मैं, मेरा फेवरेट काम होता है रात में स्टार गेजिंग। आजकल स्टार गेजिंग जैसे एकदम नापेद हो चुकी है, पीपल डोंट डू इट। हम इतने लाइट पोल्यूशन के दौर में आ गए हैं कि हम सितारों को तो भूल ही गए देखना, तो कहाँ से सितारे बनेंगे भाई? खुद सितारा बनने के लिए सितारा देखना भी तो पड़ता है। तो सिर्फ तारे जमीन पर ऐसे नहीं आएंगे, तारे आसमान पर तो देखोगे तब तो जमीन पे आएंगे। तो स्टार गेजिंग इज वन ऑफ वेरी गुड थिंग्स टू स्पेंड टाइम इन नेचर रात में। जैसे मैं अभी तो मेरे लिए बहुत कम टाइम मिलता है, तो मैं वीकली आई, जिसमें अपनी पर्सनली, ये मैं सेल्फ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जस्ट, हालांकि बहुत पुअर है, कि मैं वीक का एक दिन निकालता हूँ, जनरली थर्सडे नाइट्स या इवनिंग्स में, जहाँ मैं जाता हूँ किसी पार्क वार्क में और जाके सिर्फ घास पर लेट कर सिर्फ सितारे देखता हूँ। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, हस्ब तौफीक जितनी मेरे क्या नाम है वक्त मिल जाए। जस्ट लाई डाउन एंड जस्ट वॉच द स्टार्स। गो एट सम डार्क प्लेस जहाँ दिख सकें सितारे, नहीं तो जहाँ पे लाइट पोल्यूशन ज्यादा है वहाँ तो दिखेंगे ही नहीं। तो स्टार गेजिंग इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स। और अब तो सीजन भी आ रहा है मीटियोर्स का, एंड वो अगर इफ यू कैन गूगल कर लीजिए, अपने अपने इलाकों में शूटिंग स्टार्स भी देखने को मिल सकते हैं इस वक्त आपको। अभी सीजन आ रहे हैं बहुत सारे आने वाले हैं। ये जो ये सीजन है अभी 2-3 महीने, इनमें यू विल फाइंड सच थिंग। सो पुट एफर्ट्स, गो। एक टेलीस्कोप खरीद सकते हैं, खरीद के देखिए स्टार गेजिंग वगैरह, नेचर से कनेक्ट कीजिए बेसिकली, ये कहने का मतलब है। ठीक है, गोल्डन आवर्स को वॉच करना स्टार्ट कीजिए। गोल्डन आवर्स का मतलब होता है राइजिंग सन है, क्या नाम है, सेटिंग सन, सनराइज और सनसेट देखने में। आई विल से ऑलवेज वॉच राइजिंग सन। सनसेट कम देखना चाहिए, सनसेट से स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी में, लेकिन सनराइज से स्ट्रेस कम होता है। तो ये भी सब चीजें हैं, इन सबको भी अपनी जिंदगी में इनकलकेट कर सकते हैं। ये सारा बोनस है जो आपको मैंने बताया है। प्रो टिप फॉर मुस्लिम, जस्ट फजर बाद सोना बंद करो। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सोने के बजाय क्या करो, चले जाओ बाहर, थोड़ा सा सूरज देखो, थोड़ा जिक्र अज़कार कर लो, उसके बाद करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस भी है कि रिस्क की तस्कीम, जो तकसीम का वक्त है इस उम्मत के लिए, अल्लाह ताला ने फजर के बाद का वक्त रखा है। और रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, याद रखिए, रिस्क आपका खाना कपड़ा दौलत और सब कुछ हो सकता है। इवन योर हस्बैंड इज अ रिस्क, योर वाइफ इज अ रिस्क, एंड योर चिल्ड्रन इज ऑल्सो अ रिस्क, एंड योर टैलेंट आर्ट योर कंट्रीब्यूशन, हर चीज रिस्क है। अल्लाह ताला रिस्क में सब कुछ इंक्लूड करता है, आपके खाने पीने रहने सहने, आपके टैलेंट, आपका इल्म, ये सब इल्म से बड़ा रिस्क कुछ नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क तो इल्म है। तो उस टाइम पे अगर जो रिस्क की तकसीम के वक्त पे अगर हम सो रहे होंगे, तो भाई जाहिर सी बात है हमें क्या मिलने वाला है। सो दैट्स ऑफ कोर्स अप्लाइज टू मी एज वेल, कि मैं भी इसमें थोड़ा कोताही हूँ। सेल्फ रिवॉर्ड्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग फोकस, यस इट डज। वो मैंने मेंशन नहीं किया, आपने अपने से निकाला तो बिल्कुल यू शुड डू। लेकिन सेल्फ रिवॉर्ड ऐसा ना हो कि रिवॉर्ड, सेल्फ रिवॉर्ड के चक्कर में अपने आप को ही रिवॉर्ड करते चले जाने। सो दैट्स दैट, वी कम टू क्वेश्चन आंसर। सो अब आप लोग ने बीच में अच्छे खासे सवाल पूछ लिए हैं। तो नहीं, कई बार सेल्फ रिवॉर्ड से लोग क्या करते हैं, सेल्फ रिवॉर्ड में ही खो जाते हैं, वो फोकस, उनका फोकस फिर सेल्फ रिवॉर्ड पे हो जाता है। सेल्फ रिवॉर्ड किस लिए था वो भूल जाते हैं, काम क्या करना था। सो एनी क्वेश्चंस एंड ऑल कुछ है तो पूछ लें। वैसे तो हम ओवर टाइम जा चुके हैं ऑलमोस्ट, हमने पूरा ऑलमोस्ट
मैंने 30 मिनट सोचा था, बट आई हैव टेकन ऑलमोस्ट 70 मिनट्स, और 80 मिनट्स में ले चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों का, तो इससे ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर टेकिंग ओवर टाइम, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर हैविंग दिस ट्रबल। ओके, आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन रिक्वेस्ट माइक, और आई थिंक आप लोग सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगा के नहीं रखा था। बाकी आप चाहें तो कुछ वही आप, जज़ाकल्लाह खैर, अमेजिंग भाईजान, जज़ाकल्लाह खैर, इट वाज वर्दी, थैंक यू, यूजिंग द राइट फॉर्म्स ऑफ लाइटिंग इन योर रूम, राइट इन वॉल शेड्स, बिल्कुल ये सब तो एकदम एडवांस लेवल पे, अगर आपकी बेसिक चीज़ें फंडे क्लियर है तो उसके बाद ये इस पे भी जा सकते हैं। अच्छे मटेरियल्स यूज़ कीजिए, अच्छी चीज़ें यूज़ कीजिए, अपने आप को, कमरे को फोकस बनाइए, टेबल्स को क्लॉगी मत रखिए, जितना ज़्यादा टेबल्स क्लीन रहेंगी, जितना ज़्यादा प्रिसाइज रहेंगी, सफाई रखिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं फोकस में, तो वो तो पूरा इंशाल्लाह अपन कोर्स भी करेंगे आगे, तो आई हैव दैट रेडी। ये तो मैंने एक मास्टर क्लास कर ली, लेकिन उसके बाद विल कम, आई एम कमिंग अप सून इंशाल्लाह, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो एनी क्वेश्चंस? अच्छा, ये जो क्वेश्चन आर मैंने चूज किया ना, ये आप इसको गौर से ऑब्जर्व कीजिए, ट्राई टू रीड मल्टीपल थिंग्स, ट्राई टू सर्च फॉर वेयर या वाई, ये कुछ भी इस तरह की एक टेक्निक आती है पूरी प्रॉपर, वो पूरा एक प्रॉपर ट्रायंगुलर और पंचतंत्रा कुछ सिंबल होता है, वो पंचतंत्रा नहीं, एक सिंबल होता है वो, उसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजिंग शेप्स एंड फिगर्स होते हैं, तो उसको देखने से कई बार आप अपना फोकस को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है वो, विच आई हैव अप्लाइड इन माई लाइफ, सो इट हैज़ हेल्प मी अलॉट। तो लेकिन कुछ लोगों को उससे सर दर्द भी हो जाता है, तो जिनको होता है वो तो ना करें। खैर वो मैं आप लोग को यहाँ मेंशन भी नहीं किया, मैं आपको दिया भी नहीं, कभी और इंशाल्लाह किसी को जरूरत पड़ेगी तो मुझे पर्सनली ले सकता है बाद में, लेकिन फिलहाल जितने मैंने आपको बता दिया, अगर आपने यही सारी चीज़ें कर ली, इनमें से कोई भी एक दो अपनी जिंदगी में अप्लाई कर ली, तो इंशाल्लाह बेड़ा पार है, एंड विल बेनिफिट फ्रॉम इट इंशाल्लाह। So I believe there are no questions. Everyone is good. Can you write same page? सबको मजा आया? अच्छा लिखो मजा आया, बस इतना लिखना है, चैट में लिखिए मजा आया, मजा आया। वो क्या बोलते हैं वो मीम है ना, मजा आया, मजा आया, नहीं वो पब्लिकली लिखो। एक रिक्वेस्ट आई थी ना, वो जो ओवर थिंकिंग वाली स्लाइड है, हम्म। जस्ट ब्रिंग दैट अप फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स, कुछ नोट डाउन करना था, बल्कि रिक्वेस्ट आई अच्छा थी अच्छा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मजा आया, मजा आया, बहुत मजा आया, ठीक है, अपन ले आएंगे, इट वाज रियली गुड, थैंक्स 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 रिनाइजेंस, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन गूगल पे जाके सीखना होगा। डॉक्टर जी ने क्या मजा, अरे भाई इसी मीम की कमी थी यार, डॉक्टर जी यार सही, ये इसलिए ये सही बहन है हमारी, डॉक्टर जी। वो वाली स्लाइड चाहिए थी, कौन सी, ओवर थिंकिंग वाली, क्या नोट डाउन कर रहे थे, क्या है भाई देख लो, द प्रॉब्लम ऑफ पोटेंशियल ग्रेट माइंड से क्या है, जीनियस पीपल है भाई सब लोग हमारे यहाँ, स्टिमुलेशन इन ब्रेन डिफ्यूजेस एक्शन, ओवर स्टिमुलेशन लिख देना चाहिए यार, मैं आप लोग के सामने मैं अपनी टेक्निक दे देता हूँ, कवर कर लो, ओवर स्टिमुलेशन इन ब्रेन, थोड़ा तो स्टिमुलेशन जरूरी भी है। ओके, ऑल गुड, कर लिया नोट? ओके चलो ठीक है, आई स्टॉप शेयरिंग। So that's the end of today's masterclass. Okay, guys, I am very happy that you all tuned in and आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और इस लायक समझा कि कुछ उसके नेक्स्ट हमें। वाली स्लाइड बोल रहे थे, हमें उसके नेक्स्ट वाली स्लाइड बोल रहे थे वो, नॉट द अच्छा वन यू नेक्स्ट ब्रॉट वाली अप, फिर द से अदर शुरू। वन। हाँ, द अदर वन। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं दोबारा से दिखा देता हूँ यार, देख लो जी, कौन सी वाली स्लाइड? ओवर थिंकिंग के बाद वाली, ओवर थिंकिंग के बाद वाली, इफ आई एम राइट। ये डिजिटल ओवरफ्लो, राइट, देख लिया, ऑल गुड। चलो मैं दे दूंगा, किसी को चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा स्लाइड्स, कोई मसला नहीं, ठीक है, हो गया, डन हो गया। डन हो गया, चलिए, वेरी गुड, परफेक्ट। सो बारकल्लाहु लकुम, लना व लकुम, अल्लाह ताला हमारे इस इल्म के मैदान में सीखने, क्योंकि सारे मुस्लिम्स हैं, तो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टू स्लोली पुट अप वो सारे अभी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट क्लास। अरे पढ़ाई पढ़ाई करो, पढ़ाई मेहनत करो, क्लास तो रोज ही होती रहेगी। ओके, चलिए तो किसी को कुछ कमेंट्स हैं, कुछ भी एनीथिंग है, इफ यू वांट टू इंक्लूड नाउ यू कैन से इट, इफ यू वांट टू से इट ऑन माइक यू कैन से इट, इफ यू वांट टू राइट इन कमेंट्स यू कैन राइट इन कमेंट्स। अगर आपको इस चीज़ के ख़त्म होने के बाद, यू कैन ऑलवेज, यू हैव माय सोशल मीडिया, यू हैव माय ईमेल, यू कैन ऑलवेज
come up with your suggestions, your ideas, your comments, or कुछ भी, ठीक है? So I'll stop the recording and you're free to go. Thank you. Barakallahu lakum. Oh, recording. Okay, thank you.